So, welcome you all to this Valentine week, and today we will be talking about on your medical dream, how to shape your medical success and everything. And here with us, I am Dr. Debojyoti Kaur, on behalf of Team PrepMed, and with me, the stalwart of the medical science, Dr. Shumir Shetty, the director of Delhi Institute of Medical Sciences. And today we will be talking about many important questions that we have received through many platforms. And I know, guys, you are quite excited to get those answers of those questions. So before starting the sessions, first of all, I want to tell all our YouTube viewers and the Facebook viewers, don't forget to comment because we will answer all the questions. I will specially answer the questions on the NEET UG sections. Dr. Shumir Shetty will answer especially the questions in regard of NEET PG sections, and as well as your future dream as a successful doctor. So guys, can we start? I think everyone is quite excited. Everyone is writing yes. Srikanto, Odhikari, Debshomo, Obishto, Tanmoy, Antara Bera, Bipasha. Yes, we are right now. So sir, with your permission, can we start, proceed forward? Definitely, definitely. I think we should start. Yes, sir. Okay. So the first question that I think, sir, it's a question of everyone in mind. That as I know, sir, you had a fantastic rank in AIPMT as well, as much as I know. So, sir, I want that. What's your experience, sir? At your time, I know AIPMT was it was not NEET UG. It was something different examination that was NEET AIPMT. Right now, it is NEET UG. So, sir, what's your experience at that time of AIPMT? See, one of the things that has now changed, and मुझे लगता है जो एक सबसे important change है, जो पहले हमारे टाइम पे दो एग्जाम होते थे, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे. और स्टेट लेवल पे हर स्टेट का एक अलग अलग लेवल पे डिफिकल्टी लेवल पे एग्जाम होता था. मतलब अगर आप केरला स्टेट का एग्जाम लिख रहे हो तो अलग डिफिकल्टी होगा, दिल्ली स्टेट का लिखोगे तो अलग होगा, यूपी का अलग लेवल पे होता था, और एक कंट्री वाइड एग्जाम होता था जिसको हम ऑल इंडिया पीएमटी कहते थे. नीट आने के बाद वो स्टेट लेवल के जो मल्टीपल एग्जाम्स होते थे वो हटा के एक सिंगल एग्जाम कर दिया गया जो नीट यूजी है, और सेम ही चेंज उन्होंने नीट पीजी के लिए भी किया. तो ये दोनों ही जगह पे सिंगल एग्जाम लेके आ गए. सिर्फ उसमें से सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स को एक्सक्लूड कर दिया अभी हमारे वाले सेक्टर के अंदर. पीजी के अंदर जो एम्स का या पीजीआई चंडीगढ़ है या हमारा जिपमर का एग्जाम वो अलग होता है, बाकी कॉमन है ऐसा. तो उससे थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया. लेकिन अगर मैं अपने टाइम की तरफ भी देखता हूँ, एंड आई थिंक यू नो लॉट ऑफ यू विल रेजोनेट, द स्टेट पीजी एग्जाम्स एट माय टाइम वर मोर ऑफ यू नो रैंडम डिफिकल्टी लेवल, लेकिन जो एआईपीएमटी होता था वो एनसीईआरटी के लेवल पे ज्यादा आता था. एंड दैट इज वेयर टुडे आई थिंक इवन इन नीट यूजी आई थिंक दैट एनसीईआरटी प्लेज अ बिग रोल के जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स हैं. Yes. Okay. So guys, if you have any question, feel free to comment below. We will be talking on those questions also. So Dr. Shetty, thank you for this answering. Dr. Shetty has already shared his experience at his time, that how AIPMT was actually. And right now it is changed into NEET UG, as we know. So the changes that have already been discussed by us, and Dr. Shetty, I want to ask one question, sir. Basically right now the scenario कुछ इस तरह का हो गया है क्या, डॉक्टर्स जो एटीट्यूड होना चाहिए टू द मेडिकल साइंस एंड हाउ व्हाट आई विल गेट बीइंग अ डॉक्टर. So these are the very common questions, sir, to all these young talents, because they are targeting something. They don't know what they are in future they are going to get, and what they will achieve in future. So basically, most of the students, a very common question to all the young budding doctors, that they want to ask, sir, what we will get, and what our attitude should be when we will become a doctor, even before becoming doctor and after becoming doctor. नहीं, बिल्कुल ठीक है. आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देवज्योति आपका, और आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो चैट में हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही हम जब क्लास 12th में या क्लास 11th में हम जब मेडिकल के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, तो एक हमें आइडिया हमारे को सेल कर दिया जाता है कि एक बार बस मेहनत करनी है, इसके बाद बहुत ही इंजॉय होगा और इसके बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, एंड यू नो एक बार मेहनत करनी है. सो वी ऑल स्टार्ट लुकिंग एट कि मेडिकल करियर जैसे कोई एक डेस्टिनेशन हो जहां हमें पहुंचना है.
जबकि जब आप वहां पहुंचेंगे, एंड मैं चाहता हूं कि ये ओरिएंटेशन आपका आज ही हो पाए, जब आप वहां पहुंचेंगे आप देखेंगे ये तो एक जर्नी का शुरुआत है। जिसको आप डेस्टिनेशन समझ रहे हैं, जिसको आप मुकाम समझ रहे हैं, वो एक्चुअली आपकी जर्नी की शुरुआत है। और अभी तक जो भी आपने सीखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो एकदम अलग है। जो हमें अभी मेडिकल साइंस में पढ़ना है वो उससे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है। तो पहली चीज जो मैं चाहता हूँ, माइंडसेट को रीट्यून करना है हमें। हमें एक डेस्टिनेशन माइंडसेट से हटते हुए हमें जर्नी माइंडसेट में जाना है। जर्नी माइंडसेट में क्या होता है कि मुझे पता है कि ये मेरा अब जो जिंदगी का सफर है, जो जर्नी है, ये एक डॉक्टर की तरह बीतेगी ना। इसमें अब ऐसा नहीं कि बस 2 साल होंगे खत्म होगा, 3 साल होंगे खत्म होगा। और कई बच्चे, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो पीएमटी वाले माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाते। वो सोचते हैं बस एक बार पीजी मिल जाए फिर जिंदगी सफल हो जाएगी। फिर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अभी भी सफल नहीं हो रही है। अभी फिर डीएम मिल जाए तो सफल हो जाए। मतलब ये डेस्टिनेशन से हमें हटना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, मेडिकल साइंस में एक वर्ड है साइंस, यानी इसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जो भी आज तक के मतलब रिसर्च के द्वारा और हमारे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो हमें पता है, हमें मतलब मेडिकल साइंस का मतलब क्या है, आपको पहले नॉर्मल सिखाएंगे। नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, पहले नॉर्मल सीखेंगे। फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी सीखेंगे, नॉर्मल उसका बायोकेमिकल बेसिस सीखेंगे। यानी हम पहले नॉर्मल से शुरू करते हुए फिर हम बीमारी की तरफ जाएंगे। बीमारी में भी हमारे पास एक ब्रिज होगा। जैसे हम जो नॉर्मल कह रहा हूं मैं, जिसे हम एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी कह रहे हैं, इसको बोलेंगे प्री क्लिनिकल्स। और वहां से हम आपको धीरे धीरे क्लिनिकल पे लेके जाना है, जहां पे आपने मरीज को ट्रीट करना है। तो बीच में एक ब्रिज होता है जिसको हम कहते हैं पैरा क्लिनिकल्स, जहां पे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आएंगे। तो आपको इस जर्नी के अंदर पहले तो नॉर्मल सीखना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या है। हम मतलब क्योंकि साइंस है एक, मतलब ये आपने, अगर आप इस बात को एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक वंडर के साथ, एक मतलब एक, जैसे आप क्लास 4th में थे ना, जब आप क्लास 4th में थे, 5th में थे, और कोई भी चीज आप जानते थे कि जुपिटर प्लैनेट है, आप कितने एक्साइटेड हो जाते थे। उसी एंथुसियाज्म के साथ जब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल में सीखेंगे, जब आप डायसेक्शन हॉल में पहली बार जाएंगे, अब या तो आप उसे काम सोच लो। अगर तो आपने सोच लिया कोई काम है, फिर बात नहीं बनेगी। या आपने सोच लिया बस मैं यहां तक पहुंचना था, नहीं, आपने यहां सीखना है। तो जब आप उसको जब सीखोगे तो आप हर दिन, आपको ऐसी एक यूरेका मोमेंट मिलेगी, आप बोलोगे वाओ मजा आ गया यार, मैंने ये सीखा। तो पहले आप नॉर्मल सीखोगे, फिर एबनॉर्मल, फिर आप लोगों की मदद भी कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस माइंडसेट को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो क्या मिलेगा, जो देवज्योति ने यहाँ क्वेश्चन पूछा, ये क्या मिलेगा अगर आप रुपए पैसे में तोलना चाहते हैं तो मुश्किल है। क्योंकि ये हर चीज को, सक्सेस को रुपए पैसे में नहीं तोला जा सकता। सक्सेस को हम तोलेंगे कितने लोगों की जिंदगियों को हम टच करेंगे जिंदगी के अंदर एज अ ह्यूमन बींग। तो पहले तो आपको सीखने को मिलेगा साइंस के बारे में। धीरे धीरे आप लोगों की मदद कर पाएंगे, आप बहुत सारी जिंदगी को टच कर पाएंगे। एज अ डॉक्टर अगर आप एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो आप केवल अब उसकी जिंदगी को नहीं टच करते, वो जो आदमी जिसको आप ट्रीट कर रहे हो, किसी का फादर है, किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, वो पूरे जिंदगी के तार उसके जुड़े हुए हैं जिनको आप टच करते हो। तो एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है। लेकिन अगर आप सोचोगे मुझे क्या मिलेगा या मैं कहाँ पहुंचूंगा, तो थोड़ा सा माइंडसेट को आपको बार बार फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि लंबी जर्नी है। मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन पे लूंगा कि ये जर्नी लंबी है। इसको आप इंजीनियर की जर्नी से, या चार्टेड अकाउंटेंट की, या आप कोई भी प्लम्बर या कोई इलेक्ट्रिशियन, इनकी जर्नी से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। किसी को सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, किसी को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरी एनाटॉमी जान के सर्जरी करनी है, और कब करनी है कब नहीं करनी, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसमें समय ज्यादा लगता है। तो इसकी लर्निंग कर्व लंबी है। अगर आप जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे होगे तो आपको ये कर्व थोड़ी पेनफुल लगेगी। आपको लगेगा यार मैं तो इतने लंबे चक्कर में फंस गया, मेरे दोस्त तो इंजीनियर बन गए, मेरा तो अभी एमबीबीएस नहीं खत्म हुआ। आप कंपेयर नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इम्पैक्ट आप सोसाइटी के लिए लाओगे वो कोई और नहीं लाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप ये कंपैरिजन माइंडसेट से हटेंगे, डेस्टिनेशन माइंडसेट से हटेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है। मतलब मैं ये, अगर इसको विद ऑल हम्बलनेस, मुझे मेरा ग्रेजुएशन किए हुए आज 22 साल हो गए, और एमबीबीएस खत्म किए हुए, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। मतलब मैं हर दिन कोई नई चीज देखता हूँ। मतलब हर कोई मरीज के अंदर कोई नई बात मिल ही जाती है रोज। किसी की एनाटॉमी में कोई वेरिएंट होता है, किसी के अंदर कोई नया, कोई इस तरह की चीज होती है जो हम पहले नहीं जानते होते। तो ये हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। मतलब ये मेडिकल प्रोफेशन आपको हर दिन आपको बताएगा कि आपसे बड़ी है मेडिकल साइंस, आप उससे बड़े बिल्कुल नहीं हो सकते। बिल्कुल।
बिल्कुल एकदम सही सर। सर हमारे स्टूडेंट्स ने भी कुछ क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको भी हम लोग को आंसर करना चाहिए। जी तो जी जी। सर स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या सर आपके टाइम में यानी कि पिछले टाइम में जैसे कि हम लोग को कुछ फैसिलिटीज मिलते थे और अभी शायद उन लोग को कुछ ऐसे मिल नहीं रहा है, ऐसे कुछ है या फिर अब मतलब उन लोग का क्वेश्चन ये है क्या फैसिलिटीज एंड हार्डशिप, मतलब ऐसे मतलब उन लोग को ऐसे कुछ है क्या उसको नहीं मिल रहा है या फिर उनको ज्यादा कुछ मिल रहा है कंपैरिजन टू द प्रीवियस एरा? नहीं, अगर हम दुनिया को पूरे टोटलिटी में देखें तो आज जो चीज हमारे बच्चों को मिल रही है, हमें तो कभी नहीं उस तरह की सुविधा थी। क्योंकि आज अगर आप देखें तो आप के पास जैसे मेट्रो है, बस है, आपको कनेक्टिविटी इतनी खूबसूरत है। हम तो अपने कॉलेज से जब आते थे एक ही बस जाती थी, अगर मिस हो जाए तो फिर सुबह अगले दिन जाना पड़ेगा, ऐसा एक सिनेरियो होता था। तो चीजें दुनिया में बहुत तरक्की हुई है, देश में बहुत तरक्की हुई है। लेकिन मेडिकल साइंस के अंदर अगर हम डोमेन के अंदर डीप जाते हैं तो एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं बच्चों को भी समझनी है। इंडिया के अंदर पिछले 10 साल के अंदर मेडिकल की सीटों को बढ़ाने की तरफ पूरी तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी ने काम किया। मानी अगर हम देखें तो हर साल एमबीबीएस की सीटें बढ़ रही हैं, कॉलेजेस और खुल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री के अंदर जब भी एक गति से ज्यादा तेज जब वो सीटें बढ़ाते हैं तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है वो सफर करती है। यानी मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको थोड़ा समझना है आपने, कि जिन कॉलेज में पहले 100 बच्चे होते थे, 150 होते थे, आज 250 बच्चे होते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे नए कॉलेज भी हैं। तो ऑल्दो अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, लेकिन वहां पे आपके पास हो सकता है कि पूरी तरह से आपके पास उतना एक्सपोजर ना हो जो कि कम बच्चों में आपको मिलता। तो थोड़ा सा ये हमें पहले पता होना चाहिए बात के, मतलब आप तो सोचोगे मैं स्कूल से, जैसे आप कई बार क्या होता है, बच्चा पेरिफेरी में स्कूल में पढ़ रहा होता है, वहां का टॉपर है और वो सोच रहे मैं तो टॉप करके आया, वो कॉलेज में वो 300 300 250 300 बच्चों के अंदर वो कह रहा है या तो सारे टॉपरों के अंदर मैं तो दब गया। तो कभी आपको ऐसा लग सकता है, फीलिंग आ सकती है। ओके। तो जैसे बच्चे सुन लिए जो क्वेश्चन थे आपके, क्या आप लोग को फैसिलिटीज ज़्यादा मिल रहा है? ठीक है, तो आप लोग उसका एक मैं इस्तेमाल। थोड़ा सा और ऐड करूंगा, वो जैसे श्योर। टेक्नोलॉजी से भी काफी चीजें एनेबल हो गई हैं। जैसे हम लोग के समय में हमारे पास गाइडेंस नहीं थी। जैसे मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से मेरा एमबीबीएस किया और उसके बाद मैंने एमडी रेडियोलॉजी किया। तो हम लोग के समय में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं थी, हम खाली सीनियर पे डिपेंडेंट थे, सीनियर से पूछना है और कोई था ही नहीं। अब क्या हो गया है कि अगर आप पेरिफेरी में भी पढ़ रहे हैं, आप फॉरेन में भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में किसी डिस्टेंट जगह पे पढ़ रहे हो, लेकिन आज आपके पास सुविधा है। मतलब जैसे जब हमने हमारा इंस्टीट्यूट शुरू किया डैम्स, उस समय पे मतलब हमारा पास जो बच्चा आता था वो कहता था यार कि हमें वो जानना है कि जो दिल्ली के बच्चों को पता चल रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा पेरिफेरी के अंदर। तो इस तरह से हमने डैम शुरू किया, फिर हमने धीरे धीरे कई सिटीज में उसे खोला। और अब तो मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी आने के बाद वो पावर आपके हाथ में ही आ गई है, तो एक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव हुआ है। एग्जैक्ट। तो ये एक मुझे लगता है कि नया हमारे पास फायदा भी है। मतलब कुछ जगह कुछ कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन कुछ चीजें मतलब टेक्नोलॉजी ने आपके लिए बहुत एनेबल भी की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हाउ टू स्टार्ट एट फर्स्ट, एट फर्स्ट नीट स्ट्रगल में सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना चाहिए? नीट स्ट्रगल मतलब आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन एग्जैक्टली, बट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट एट फर्स्ट नीट स्ट्रगल। आई थिंक ही इज आस्किंग अबाउट द नीट स्ट्रगल क्या होने वाला है या फिर नीट में कौन से स्ट्रगल है, ऐसे कुछ क्वेश्चन। तो डेफिनेटली वी विल आंसर। या सर। हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम इसको नीट के बच्चे, मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, नीट जब आप बोलते हैं इसके बहुत सारे मतलब है। एक नीट यूजी है जो आप पीएम प्री मेडिकल टेस्ट दे रहे हैं। एक हमारा नीट पीजी है जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देते हैं। एक नीट एमडीएस है जो डेंटल के बच्चे एमडीएस करने के लिए देते हैं। एक नीट सुपर स्पेशलिटी है जो एमडी करने के बाद लोग डीएम या सुपर स्पेशलिटी में जाने के लिए देते हैं। तो नीट एक कॉमन एग्जाम के अंदर सब एग्जाम बनाए हैं सरकार ने। तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन पूछें तो थोड़ा सा डिटेल में पूछेंगे तो हम और बेहतर बता पाएंगे। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन ले लिया है, तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये एनएमसी ने 2 दिन पहले नेशनल मेडिकल कमीशन जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, एक सेमिनार किया। उन्होंने बताया है कि जो बच्चे इस साल एमबीबीएस में एंटर कर रहे हैं उनका नीट पीजी नहीं होगा, उन्हें नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। इन बच्चों के लिए नेक्स्ट का एग्जाम दो दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 की 2 स्टेज होगी, एक स्टेज होगी सेकेंड ईयर के बाद, एक स्टेज होगी फाइनल ईयर के बाद, और पार्ट 2 होगा इंटर्नशिप के बाद। ये एग्जाम आपके लाइसेंसिंग के लिए भी काम आएगा और पीजी की सीट के लिए भी काम आएगा। मैं अगर आप में से किसी के और क्वेश्चन होंगे तो मैं इसमें और डिटेल में भी आंसर करूंगा, लेकिन ब्रॉडली
आने वाले समय में जो बच्चे अभी एमबीबीएस में एंटर कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए आपके लिए नीट पीजी नाम का एग्जाम अबॉलिश हो जाएगा, वो उसकी जगह नया एग्जाम आएगा, उसका नाम है नेशनल एग्जिट एग्जाम। इसको अगर आप पास नहीं करते तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन नहीं मिलेगा। यानी ये दो भाग हैं, इसके लाइसेंसिंग भी है और उसके स्कोर के आधार पे आपको पीजी की सीट भी मिलेगी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सो आई थिंक गाइज यू हैव गॉट द आंसर। क्या मतलब आपको जो नीट यूजी खत्म नहीं है, इसके बाद आपके नीट पीजी भी होने वाला है। और जैसे सर ने बताया, क्या इसको आप एक जर्नी समझना चाहिए, ठीक है, मंजिल नहीं, कुछ एक जर्नी की तरह सोचोगे तो आपको ये एंजॉय कर सकोगे, और वही आपकी अभी जरूरत भी है, यही चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर स्टूडेंट ने पूछा था, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको आंसर करने के लिए। सर, बुक्स ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि कुछ ऐसे किताब है जो कि आपके मतलब जो हमारे लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर सके, या फिर हमारे लाइफ के विजन क्या होना चाहिए, इस बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर कोई फ्रेम कर सके हमारे विजन को, ऐसे कुछ चीज। नहीं, अब इसमें ना पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे बच्चे हैं इनके पास किताब पढ़ने के अलावा और बहुत सारी चीजें आ गई, जिसमें से वीडियो है या पॉडकास्ट है। लेकिन जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन को पैसिवली आप कंज्यूम करते हैं, जैसे आपने एक वीडियो देखा है ना, अभी तो आप लाइव देख रहे हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप बाद में इसको रिकॉर्डेड देख रहे होंगे तो आप उसे पैसिवली कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते समय हमारा दिमाग एक्टिवली उसको विजुअलाइज करता है, एंड दैट फॉर्म्स दी कॉन्सेप्ट्स। ये मतलब अगर एक आप बात समझेंगे तो आपको हर तरह की किताबें पढ़ने में मजा आएगा, आपके सिलेबस की भी और सिलेबस के बाहर की भी। तो एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे आज जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने आप अभी प्रेप मेड के साथ पढ़ के अगर उन्होंने बहुत बढ़िया रैंक भी निकाला है, अगर वो 14 फरवरी अगर ज्वाइन कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज को, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट ईयर उनका थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि लेट हो गया पैंडेमिक के कारण। तो उनको स्टैंडर्ड किताबों को पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम कम मिलेगा, तो उन्हें थोड़ा जल्दी इसको पकड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने उसको बताया कि इस बार उनकी वेकेशन भी छोटी होगी, उनके सैटरडे संडे को भी इस्तेमाल करेंगे, तो शायद उन बच्चों को और कुछ पढ़ने का समय ना मिले, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर हमें समय मिलता है तो हमें हमेशा कोई भी किताब जो अच्छे ऑथर्स ने लिखी है या अच्छा लिटरेचर है पढ़ने में हमेशा फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इवन मेडिकल के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, थोड़ा देवज्योति को बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे गाइटन करके किताब आएगी आपके फर्स्ट ईयर में, फिजियोलॉजी की, खूबसूरत किताब है, खूबसूरत किताब है। आपको पढ़ने में मजा आएगा कि यार मैंने कुछ सीखा जिंदगी के अंदर। उसी प्रकार से सेकंड ईयर में रॉबिन्स नाम की एक पैथोलॉजी की किताब है, अच्छी किताब है, आपको पढ़ने में ही आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ सीखा है। तो इस तरह से किताबें बात करती हैं आपसे, अगर अच्छी किताबें हो। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। सर, एक बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं भी पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो सर, आई वांट टू नो हाउ टू कीप माई सेल्फ अनअफेक्टेड एंड स्ट्रांग, एंड हाउ टू कीप आफ्टर सीइंग समवन इन पेन। I'm in-house student, and it is asked by Brishtai Chakraborty. So she is asking this question, sir, कैसे unaffected रहे in situations of someone when someone is in pain? नहीं, अनअफेक्टेड क्यों रहना है, मैं इस बात को मैं थोड़ा सा समझ ही नहीं पाया। मैं आपको बताता हूँ बच्चे, देखिए मैं सोचता हूँ आपका जो सवाल है उसका जो बैकग्राउंड ये है कि आप सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और जब मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी तो मुझे ऐसे मरीज मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो दर्द में होंगे, पेन में होंगे, तो मैं उससे कैसे अफेक्ट ना हूं। तो पहली चीज तो ये है कि ये एकदम मिथ है कि डॉक्टर अफेक्ट नहीं होता। ऐसे डॉक्टर कोई रॉबोट थोड़ी है, हम भी इंसान ही। तो एक अच्छे डॉक्टर के अंदर अगर आप अच्छे डॉक्टर बनते हैं तो उसके 3 भाग हैं। पहला भाग है उसका नॉलेज, कि जो आप कॉलेज में, जैसे हमने अभी आपको बताया कि आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, आप सीखेंगे। दूसरा भाग है आपकी हैंड स्किल, जो आप धीरे धीरे प्रोसीजर्स करेंगे। आप जब अपने क्लिनिकल वाले ईयर में आएंगे, सूचर कैसे करना है, राइल्स ट्यूब कैसे डालनी है, आप स्किल सीखेंगे। लेकिन तीसरा भाग जो आप भूल जाते हैं वो है एम्पैथी। बहुत ही अच्छे जितने भी फिजिशियन हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, ज्यादातर की जो खास बात उनकी प्रैक्टिस के अंदर थी कि वो मरीज के दर्द को समझ रहे थे। लेकिन उससे अब आप, लेकिन उसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी जरूरी है, और एम्पैथी मुझे लगता है कि आज सक्सेस के अंदर आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में पहुंचते हैं, अगर आप अपने सामने वाले के बूट्स में अपने आप को नहीं रख पाते तो आप उसके साथ सही से जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी सच है। अब ये जो बच्चे ने पूछा, शायद वो बच्चा ये पूछना चाहता है कि क्या मैं उसमें घबरा तो नहीं जाऊंगा। वो समय के साथ आप सीख जाते हैं।
समय के साथ आप इमोशन को और अपने काम को, अपनी काबिलियत को अलग अलग चैनल में चलाना सीख जाते हैं। मतलब आपके सामने हो सकता है ऐसा कोई मरीज आए जिसको सपोज करो कोई नाइफ इंजरी है, कोई स्टैब इंजरी है, तो आपको एक बार के लिए आपको घबराहट भी होगी, लेकिन आप सेपरेट कर पाते हैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ इमोशनल कंपोनेंट को और अपनी स्किल को। और जो अच्छा डॉक्टर होता है वो अपनी इमोशंस को हटा के, मतलब उसको पता है कि दूसरा आदमी क्या सफर कर रहा है, अगर पता नहीं होगा तो फिर तो आप रॉबोट होगे ना, लेकिन उसको हटा के वो जो उसके लिए सही है वो कर पाता है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आप सीख जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम बेटा, डोंट वरी, विथ टाइम यू विल लर्न दिस थिंग्स। उतना मतलब सोचो मत, अभी सिर्फ अपने जो फोकस है एग्जाम को क्रैक करना है और फिर कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, ये आपके गोल है और इसी को मेन गोल बना के चलो। डोंट वरी, सब हो जाएगा विद टाइम, कीप यू बिलीव इन योरसेल्फ। ओके। और यहाँ मैं एक बात ऐड करूँ, जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि, तो इसका मतलब आप एक अच्छे इंसान है। मेरा ये मानना है कि अगर हमें किसी का दर्द दिख रहा है, इसका मतलब वो अच्छे इंसान है। तो वो तो मुझे लगता है किसी भी करियर में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे लगता है पहला कंपोनेंट ही है कि इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग यू विल डू वेल फॉर अदर्स, एंड इफ यू डू वेल फॉर अदर्स यू आर अ गुड फिजिशियन, यू आर अ गुड डॉक्टर। ओके, टू ऐड टू दिस क्वेश्चन सर, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया बच्चे ने, क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी कि सर एक्चुअली बात ये है क्या, माई प्रिपरेशन गेट अफेक्टेड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ सीइंग समवन सफरिंग, आई वांट टू गेट ओवर दैट। यानी कि जब प्रिपरेशन हो रहे हैं या फिर हो सकता है, होता है फैमिली कुछ इश्यूज होता है, कोई अफेक्टेड है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, आई थिंक शी इज ट्राइंग टू गेट सम सॉल्यूशन। बेटा देखो, मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि एक जो एग्जाम है ना, ये जिंदगी का एक भाग है, जिंदगी नहीं है पूरी। ये सभी बच्चों को जानना है। कई बच्चे एग्जाम को पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। देखो, जिंदगी के 3 भाग है। सक्सेस अगर आपने पाना है तो एक आपके सपने हैं, जहां पे आपका एग्जाम है, मेडिकल का एक प्री मेडिकल टेस्ट है, पीजी का एग्जाम है, कॉलेज है, सपने हैं, एम्स है, वो सपने हैं आपके। दूसरी तरफ आपकी अपनी हेल्थ है, तीसरी तरफ आपके रिश्ते हैं जिसमें परिवार है, और जो परिवार आप आगे बनाओगे वो रिश्ते भी जरूरी हैं। तो रिश्ते हैं, हेल्थ है और आपके सपने हैं, इनको बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। सपोज करो मैं नहीं जानता कि आप किसकी पेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अफेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो परिवार में से कोई है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या आज से 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो क्या परिवार में कोई क्लोज, मतलब मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, अगर वो दर्द में, या मैं उसको छोड़ के मैं बोलूं मैं तो जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो फिर भी वो सक्सेस के क्या मायने हैं? वो तो मुझे लगता है कि हमें परिवार के साथ भी खड़ा होना पड़ता है जब जरूरत है। और ये आपको हमेशा एक, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा। जब आप बच्चे होते हैं, आप जब छोटे होते हैं, आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया को मैं रोक दूं और मैं पढ़ता रहूं, लेकिन दुनिया रुकती नहीं है ना। घर पे कोई बीमार भी पड़ेगा, कोई मतलब अनटूवर्ड इंसिडेंट भी होता है, कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां आपके लिए हेल्थ भी खराब होती है। तो इसको बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा, इसको मान के चलना पड़ेगा, ये सब हो सकता है। और उस समय पे, क्योंकि जिंदगी खाली एक सपने के पीछे भागना नहीं है ना। अगर परिवार के साथ नहीं खड़ा हुआ और मैं सपना बनाता रहा तो भी आपको गिल्ट होगा। तो ये बैलेंस ही ट्रू सक्सेस है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लाएं और गिल्ट मत लाएं। मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहता हूं, पिछले 2 साल में कोविड में मैंने देखा कि कई बच्चे मेरे पास आए, स्कूल के भी, कॉलेज के भी, जो कहते हैं कि सर मेरे घर में कोविड किसी को हो गया, इस कारण से मेरी पढ़ाई खराब हो गई। तो मैं उनको मेरे ये कहना, इस बात पे अगर आप परिवार के साथ खड़े हैं किसी कारणवश तो आप गिल्ट मत लाइए, कोई बात नहीं। उन सपनों का भी क्या मायने है अगर मैं परिवार के लिए या रिश्तों के लिए नहीं खड़ा हो पाया, तो वो बैलेंस आपको लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसको लेके गिल्ट मत लीजिए कि मुश्किल आ गई थी परिवार पे तो मैं नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद पढ़ लेंगे। लेकिन बैलेंस जो की है कि सपने भी चाहिए, रिश्ते भी बनाने हैं और हेल्थ भी रखनी है। ऐसा ना हो ना, मैं हेल्थ को यहाँ एक बार डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि कई बच्चे जो स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें हेल्थ नहीं पता होती। हेल्थ फिजिकल और मेंटल दोनों है। कहीं ऐसा ना हो ना मैं इस पूरी लड़ाई में इन सबको छोड़ दूं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर लंबी, ये एक मैराथन है। मैंने पहले ही बताया, शुरुआत में बताया कि मेडिकल करियर एक जर्नी है, एक मैराथन है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ 100 मीटर बहुत तेज भागना है, अपना मेंटल फिजिकल हेल्थ बर्बाद कर दिया, रिश्ते बर्बाद कर दिए और फिर जीता ही नहीं, फिर आगे नहीं जीत पाएंगे। करेक्ट सर, करेक्ट, एग्जैक्टली सर। सर इसी क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। सर, I feel illness when I go to hospitals due to environment. How will I manage this thing in future? सेम क्वेरी सर, सब लोग का क्वेरी अक्लेमेटाइजेशन है। देखो ये बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम नॉन मेडिकल जो लोग जो होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं, वो घबरा से जाते हैं। लेकिन अब हम पूरी जिंदगी हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता।
तो अक्लमटाइजेशन हो जाती है, समय के साथ आप जाते हैं, आपका काम की जगह बन जाती है, तो यू गेट यूज टू इट। वो आप घबराए नहीं इस बात से, आपको ऐसा लगेगा शुरू में वो, लेकिन हमें भी लगता है अगर मैं किसी फैक्ट्री में जाऊं तो मुझे अजीब लगेगा, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उसको ठीक लगता है। तो हॉस्पिटल को आप ये सोचिए आपके काम करने की जगह है आपके लिए, मतलब मैं तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाती है उससे। मतलब मुझे लगता है इस बात से आपको घबराना नहीं चाहिए अगर आप मेडिकल करियर परस्यू करना चाहते हैं तो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन एक्चुअली थ्रेड में कॉमन क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन गाइस, डोंट वरी, सब लोग क्वेश्चन पूछते रहो। सर एक क्वेश्चन है, रिपीटर्स लोग सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार। एक क्वेश्चन, सर इट इज वेरी मोनोटोनस फॉर रिपीटर्स, आई थिंक सर फॉर नीट यूजी, नीट पीजी, फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, इट्स रियली monotonous, and how to overcome this monotony, how to overcome this challenge and all the adversities that we everyday face when we are repeaters. Sir please. देखो पहले तो मैं 3 चीजें बतानी है इसके अंदर, कि अगर हम सपोज एक एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो सपना था हमें नहीं मिला, हमें, लेकिन मेरे लिए वो सपना बड़ा है जिंदगी में, मैं उसे फिर भी परस्यू करना चाहता हूँ। तो पहले मेरा कारण ठीक है कि हाँ मेरे सपना मेरे लिए जरूरी है, मैं इसलिए परस्यू कर रहा हूँ। तो अगर ये बात ठीक है तो फिर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। कोई 1 साल पहले पहुंचा, कोई 1 साल बाद पहुंचा, इससे कोई खास जिंदगी में लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना मत घबराओ कि ये तो मेरे से पहले पहुंच गया, ये पता नहीं क्या कर ले, कुछ नहीं होगा, 1 साल बाद आप भी पहुंच जाएंगे। तो पहले तो पर्सपेक्टिव को ठीक कर दो कि मुझे दूसरों से कंपेयर नहीं करना अपने आप को। दूसरी बात जो मैं चाहता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम क्या आती है, जब तक जैसे सपोज करो मैं एक इंटर्न हूं या 12th क्लास में पढ़ता हूं, उस समय के समय मैं अगर पहले ही अटेम्प्ट में निकाल देता हूं अपना रैंक, तो मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा बाकी दुनिया में भी, मैं स्कूल कॉलेज भी चल रहा था, मेरा एक रिदम भी चल रही होती। जब हम ड्रॉप करके खाली हो जाते हैं एक बार, तो एक बार क्या होता है कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो एकदम से रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि बहुत मोनोटोनस हो गया, जैसे बच्चे ने पूछा भी है। तो उसके लिए मुझे लगता है रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी है, इस तरह की जगह अगर आप जाएंगे तो एक रिदम को आर्टिफिशियली क्रिएट करना चाहिए। मैं कैसे करता हूं मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करो मुझे 6 महीने पढ़ना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक पास में रीडिंग रूम या लाइब्रेरी को पकड़ूंगा, जहां मैं अपना टाइम फिक्स करूंगा कि 9 बजे यहां पहुंचना है, और फिर मुझे ये पढ़ना है, ब्रेक लेनी है, खाना खाना है, और रात को 9 बजे वापस आना है। ऐसा करके मैं एक रिदम बना लूंगा जिससे मुझे वो मोनोटनी ना आए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ज्यादातर इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे होते हैं, तो आपको अपना थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस को बैलेंस करना है। अगर आप एक तरफ ज्यादा आ जाओगे आपको मोनोटनी लगेगी। जैसे कई बच्चे होते खाली थ्योरी पढ़ते रहते हैं, तो अब अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो क्या होगा, आपको मोनोटोनी लगेगी। खाली एमसीक्यू कर रहे हो तो फ्रेगमेंटेड हो जाती है बात, क्योंकि एमसीक्यू में तो जितना पूछा वही है, लेकिन उसके बीच में कारण क्या है आपको नहीं पता, तो फ्रेगमेंटेड हो जाती है। उसको बैलेंस करके रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बैलेंस 60-40 है, 60% कॉन्सेप्ट, 40% एमसीक्यू। लेकिन अलग अलग बच्चों का, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बैलेंस करके चलते हैं तो उतना मोनोटोनी नहीं होती। अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अगर सपोज मैं अभी कॉलेज भी नहीं जा रहा, स्कूल भी नहीं जा रहा, और मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं और मुझे मोनोटोनी लग रही है, तो एक रीडिंग रूम या एक लाइब्रेरी की कंपनी को बनाने से भी फायदा होता है। उसी प्रकार जैसे डैम्स में भी मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ जो बच्चा को रिपीट करा होता है, तो वो कई बच्चे पूरे देश से, देवज्योति को पता है, वो दिल्ली में जैसे गौतम नगर में एक हमारे जगह में जहाँ रीडिंग रूम्स भी हैं और जहाँ पे क्लासेस, तो कई बच्चे वहां आके पढ़ते हैं कि रिदम भी बन जाएगी, और ऐसे और बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलके एक बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाती है। यस सर, एग्जैक्टली। हम भी यही प्लेसमेंट में यही करते हैं, क्या जितने डिफरेंट स्टेट्स को बच्चे को लेकर बैच बनाते हैं, क्योंकि एक स्टेट का बैच से वो लोग कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्या मेरे स्टेट में क्या चल रहा है, दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है। तो एक कम्पिटिटिव जो माहौल होता है, बच्चे लोग को वो एंजॉय करना चाहिए। दिस इज लाइक, इट्स नॉट ए वन डे गेम, जैसे आपने सर ने ऑलरेडी बताया, इट्स नॉट ए वन डे गेम, इट्स लाइक ए जर्नी, एंड एवरी डे चेंज होगा, कभी अप्स होगा, कभी डाउन्स होगा, बट यू शुड कैरी ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। दिस इज द थिंग। सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया, ऑलमोस्ट सेम टाइप क्वेश्चन, तो इसीलिए इसके साथ ही डिस्कशन करना चाहूंगा। सर क्वेश्चन ये है, सर एनी स्ट्रेटेजी हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग एंड रैपिड रिविजन ऑन ए डेली बेसिस, यानी कि बैलेंस कैसे करे, कोई पर्टिकुलर ट्रिक्स जैसे, सो दैट आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ इन बैलेंसिंग। देखो मैं इसका ना आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। ये जो भी बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एमसीक्यू पे आधारित है, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है, जैसे हमारे जो स्कूल होते हैं या जो मेडिकल कॉलेज हैं,
ये ज्यादातर एमसीक्यू को एक तरह से एक खराब चीज करके बताते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ समझ एकदम पाए सही बच्चे। मैं बात, मैं करेक्ट। एकदम सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि जब मैं मेरे स्कूल में था, हमारे स्कूल के लोग कहते थे एमसीक्यू गंदे बच्चे करते हैं, करेक्ट। और स्कूल के सिलेबस को अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। जो हम कि गंदे बिल्कुल बच्चे ही थे, हम सही पढ़ बात। गए, और मैं ऑल इंडिया 4 रैंक ले आया उस समय पे अपने यस सर। पीएमटी में। यस सर। इसी तरह मेडिकल कॉलेज में उसमें भी वो कहते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं वो थ्योरी करेंगे, एमसीक्यू नहीं करेंगे, और गंदे बच्चे एमसीक्यू कर रहे हैं। मैं करता गया, मैं फिर टॉप 5 में रैंक लेके आ गया। तो पहली बात तो ये बात को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि अगर एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे होना है और मेरे लिए क्रिटिकल एग्जाम है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। उससे हमें शर्माना नहीं है, चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो। पहली बात। अब एमसीक्यू को अगर मैं दिन के आखिर में रखूंगा, कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं अभी पहले पढ़ लूंगा फिर एमसीक्यू शुरू करूंगा। कई बच्चे कहते हैं जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब टेस्ट देना शुरू करूंगा। दोनों ही स्ट्रैटेजी गलत है, दोनों चीजों को साथ में चलना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए एक बढ़िया एडवाइस है मेरी कि सुबह उठते ही एक अपने लिए एक टारगेट बना लेते हैं। सपोज करो 50 एमसीक्यू का टारगेट है, ये बड़ा डिसेंट टारगेट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। 50 एमसीक्यू आपने अपने आप से प्रॉमिस किया कि एवरी डे मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप आई विल डू 50 एमसीक्यूज एवरी डे। ठीक है। इफ एनी डे आई एम एबल टू डू 55, सपोज किसी दिन आप 55 पे पहुंच गए, तो फिर अगले दिन से टारगेट 55 हो जाएगा, फिर वापस कभी बैक नहीं मारेंगे। मतलब ये आपने टारगेट सेट कर लिया। अब क्या होगा, आपको लगेगा मैं 50 क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन आप एक महीने के एंड पे 1500 एमसीक्यू पे पहुंच चुके होगे। 10 महीने पे आप 15,000 एमसीक्यू कर चुके होगे, सिर्फ एक डिसिप्लिन के साथ। यानी जो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि जब हम कोई भी, जैसे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है आज के समय में, आई थिंक देवज्योति भी एग्री करेगा कि पीएमटी में भी पीजी में भी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो क्या होता है, बच्चा सामान इकट्ठा करना शुरू हो जाता है। तो पहले तो इकट्ठा करता है, फिर उसको ओवरवेलमिंग लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा सामान हो गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर उसको एक रिसोर्स को पकड़ के उसके टुकड़े बांट दे कि मैं तो रोज 50 क्वेश्चन करूंगा। जैसे हमारा एक डैम्स के जो बच्चे होते हैं, उसको हम पहले दिन कहते हैं कि #DQB प्रॉमिस। हम कहते हैं तूने हमें प्रॉमिस करना है कि रोज 50 करेगा डीक्यूबी से। वो कहता है बस 50 ही करना है, ये तो आसान है। और धीरे धीरे उसका कवर हो जाता है। नहीं तो वो मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट देखते हो। आप सोचो एक बार कि अगर मैं कहता हूं मैंने आपने 15,000 क्वेश्चन करने हैं एक साल में, आपको बहुत ज्यादा लगेंगे, लेकिन मैं कहता हूं एक दिन में 50 करने, तो डुएबल लगता है। अपने आप को इस तरह से डुएबल टारगेट्स देके स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। जो आप पूछना भी चाह रहे थे कैसे कंसिस्टेंसी लाए, थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं और क्वेश्चन लेने से पहले कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जैसे ना, मैं कई मेरे इसमें यूट्यूब में भी मैंने कई इस तरह के वीडियो में पहले बात की कि एक सचिन तेंदुलकर नाम का क्रिकेटर है, एक उसका दोस्त था विनोद कांबली। दोनों बढ़िया क्रिकेटर थे, दोनों स्कूल में बराबर खेल रहे थे। लेकिन सचिन ज्यादा डिसिप्लिन था, वो रोज प्रैक्टिस में जाता था, रोज डिसिप्लिन के साथ। और विनोद कांबली एक मुकाम पे पहुंचने के बाद थोड़ा डिसिप्लिन छोड़ दिया, और सचिन एकदम उसके बाद मतलब वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बैट्समैन बन गया। कांबली जल्दी उसका करियर खत्म हो गया। तो डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नियम बनाना पड़ेगा। नियम जो होते हैं, आप जब स्कूल में हैं, आपके लिए देखो मैं आपको समझाता हूं, 8वीं क्लास तक वो नियम आपके पेरेंट्स बना देते हैं। फिर 11वीं 12वीं में आपकी कोचिंग क्लास वाले आपके नियम बना देते हैं। मेडिकल कॉलेज में जब आप आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होती है कि यार कोई नियम बना ही नहीं रहा, सब कह रहे हैं बड़ा हो गया। आप नियम नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नियम बनाना पड़ेगा कि रोज मुझे इतना पढ़ना है, इतना टाइम। मैं नहीं कहता कि सिर्फ पढ़ो, जिंदगी बैलेंस भी करना है। लेकिन अगर थोड़ा भी डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो जो बड़ा सपना देखा ऑटोमेटिकली थोड़ी पूरा हो जाएगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, सबको यही बताऊंगा क्या डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है बेटा। डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन यू कांट मीट योर एक्चुअल ड्रीम और फाइनल ड्रीम, और यू कैन से जेनिथ ऑफ सक्सेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं, आई थिंक ये बडिंग डॉक्टर्स के लिए दैट शुड बी अ कॉमन क्वेश्चन ऑल्सो। द क्वेश्चन इज सर बेसिकली वी नो देर आर मेनी न्यूज़ेस लाइक डॉक्टर्स आर thrashed by the patient parties and this. So, sir, what should be their mindset? They're asking, it is actually terrifying me. Srikant Odhikari has written this thing. Sir, somehow I think doctors are getting injured by Shrikant, the patient party, and somehow I am terrified with this news is how to overcome these things and what should be the mindset. देखिए श्रीकांत, जो एक आप जब एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं आप हिंदुस्तान के अंदर, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे इस बात को। जब आप हिंदुस्तान के अंदर आप कोई भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब आप जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। ऐसा मतलब केवल मेडिसिन के अंदर नहीं है, ऐसा बाकी भी फील्ड में। आप कल को इंजीनियर बनते हैं, आप सड़क बनाते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कुछ भी आप करेंगे, आप अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कई बार वो सेटिस्फाई नहीं होता।
डेवलप्ड कंट्री में जब मरीज सेटिस्फाई नहीं होता या जो दो पार्टी में डिस्प्यूट होती है तो वो कोर्ट में जाके सॉल्व करते हैं। हिंदुस्तान में परेशानी ये है कि हमारे यहाँ कोर्ट्स की अंदर गति बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। तो कई बार क्या होता है, इस कारण से हर फील्ड में, केवल मेडिकल प्रोफेशन में भी नहीं, हर फील्ड में छुटपुट स्पोरेडिक का मतलब होता है, आप इसे गूगल करके देख सकते हैं, मेडिकल टर्म में आप बार बार पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं झड़प भी हो जाती है, ऐसा मेडिकल प्रोफेशन में भी, और आप देखेंगे वैसे भी पुलिस के साथ भी लोगों की हर तरह से हिंदुस्तान में हो रही है। उसका कारण है कि जुडिशरी थोड़ी सी उसको, जैसे अमेरिका में जाते हैं कोर्ट में उसको फैसला मिल जाता है, हिंदुस्तान में नहीं मिलता तो थोड़ा हो जाता है। लेकिन जो मीडिया होती है या जो सोशल मीडिया है, ये नेगेटिव चीज को ज्यादा हाईलाइट करती है। तो जो बच्चे होते हैं आपके जैसे, वो सोचते हैं कि यार ये नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। ऐसा नहीं, एक आधा इंसिडेंट हुआ लेकिन हजारों लोग थैंक यू भी करते हैं, हजारों लोग डॉक्टरों को हाथ भी जोड़ते हैं, हजारों लोग मुझे कहते हैं कि आपने अच्छा काम भी किया। तो मतलब आपको लॉन्ग टर्म में अगर मैं सच बताऊं तो वो जो इंसिडेंट आप हाईलाइटेड देख रहे हैं वो कम है, वो बहुत ही कम है। लेकिन है, मैं ऐसा भी नहीं डिनाई करूंगा, मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर ये मत सोचो कि ऐसा किसी और प्रोफेशन में जाओगे तो वहां नहीं हो सकता। जहां पे भी आप हिंदुस्तान में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कभी कभी देखें दुकानदार से भी लोग लड़ रहे होते हैं, कभी कभी वो लड़ाई उनकी झड़प तक भी पहुंच जाती है। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री का एक फैब्रिक है जहां पे अभी जुडिशरी उस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर रही कि लोगों की हर डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर आप देखोगे तो फिर भी आज भी मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल और वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। मतलब आज अगर मैं अपने आप को किसी को भी इंट्रोड्यूस करता हूं एज अ डॉक्टर, पहला रिएक्शन मुझे इज्जत ही मिली है। पिछले 22 साल में भी, आज भी, शुरू में भी हमेशा इज्जत मिली है। तो मैं तो इस बात को कभी भी आपको मैं एनकरेज ही करूंगा इस मेडिकल प्रोफेशन में आने के लिए। बिल्कुल, एकदम सही बात है। ऑलवेज डेफिनेटली एवरी टाइम आप लोग को मतलब इंकरेजमेंट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मरीज होगा जो कि आपके बहुत ही आभारी होगा और आपको बताएगा क्या, डॉक्टर्स यू आर द नेक्स्ट टू गॉड फॉर मी। सो बेसिकली द नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबको मैं बताना चाहता हूँ, दोज हु हैव आल्सो ज्वाइन फॉर द फ्रॉम द फेसबुक आल्सो, यू कैन आल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शंस एंड I will directly convey the questions to Dr. Shumir Shetty for answer of the question. सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बच्चे लोग भी लिखे हैं, एक दो बच्चे ने। फाउंडेशन, व्हाट इज फाउंडेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट नीट पीजी या नीट यूजी। इसका फाउंडेशन क्या होते हैं? कोई भी एग्जाम्स के फाउंडेशन जरूरी क्यों है और फाउंडेशन होता क्या है? नहीं, अभी बड़ा ब्रॉड टर्म है इसका, कई तरह से इसका मतलब है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज जो होती है, मैं अगर इसको 3 भाग में डाल दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, पहली तो उसके अंदर है राइट बुक्स। कई बच्चे मैं देखता हूँ गलती करते हैं, यूजी के अंदर भी पीजी के अंदर भी मैं देखता हूँ, हमारे भी साथ कई बच्चे मैं देखता हूँ कि वो जैसे उनको मतलब हर प्रकार की गाइड बुक पता है लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक की किताब का नाम ही नहीं पता कि कौन सी किताब है। जैसे स्कूल के समय एनसीईआरटी किताब, जैसे मैंने जब मेरा एग्जाम दिया तो मैं एनसीईआरटी पे बहुत थरो था मुझे, लेकिन बाकी चीजें इतनी नहीं पता थी। हम साधारण घर से थे तो इतना हमारे पास सुविधा नहीं थी स्कूल के समय पे। तो लेकिन मैंने देखा कि एनसीईआरटी अगर थरोली कर रखी हो तो मैं अच्छा कर पा रहा। तो सही किताबें, सही मेंटर के आप सही, जिसको आप मेंटर मानते हैं उसकी बात को आप माने। लेकिन आप अगर हर बार मेंटर को शक की निगाह से देखेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाते। तो कई बार मैं देखता हूँ बच्चे कई लोगों की एडवाइस सुन रहे हैं और एडवाइस सुने जा रहे हैं और उनको सब पता है लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तो ये एक आज का जो एक प्लेथोरा ऑफ एडवाइसेस है दुनिया के अंदर, कि आप चाहें तो यूट्यूब के अंदर आप हजारों लोगों के एडवाइसेस लेंगे, आपको पूरे 2 साल तक एडवाइस लेते रहेंगे लेकिन रैंक नहीं बनेगा। तो राइट मेंटर, ट्रस्ट दी मेंटर, राइट बुक्स एट द राइट टाइम and then discipline, that forms the foundation of your study, I think. Exactly. और आई थिंक बच्चे जो पूछना चाहते हैं यहाँ पर सर, ये भी पूछना चाहते हैं सर, फाउंडेशन जो होता है इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है और फाउंडेशन से हम लोग को बेनिफिट एक्स्ट्रा क्या मिलता है, यानी कि ज्यादा बेनिफिट क्या मिलेगा? द सेम थिंग एक्चुअली यू विल बी अहेड देन अदर्स, क्योंकि बाकी जितने अपने फ्रेंड्स है, देखो लिमिटेड सीट्स होते हैं, ऐसे नहीं क्या मतलब कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बोर्ड एग्जाम्स की तरह तो नहीं होता है क्या सबको प्रमोट कर देते हैं या फिर सिलेक्शन हो जाता है। ये आपके एक एलिमिनेशन टाइप के टेस्ट होता है जहाँ तक हम लोग को चुनना होता है कुछ, जैसे कि नीट यूजी की बात करेंगे तो आप लोग जानते हो शायद, कुल मिला के एग्जाम देता है 16 लाख 20 लाख के आसपास एग्जाम देता है और सीट्स होता है सिर्फ और सिर्फ 50,000, वो भी प्राइवेट सीट्स को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो
बहुत सारे बच्चों को चांसेस नहीं मिलेगा, यानी कि एलिमिनेट करते हैं हम लोग बहुत सारे बच्चों को। तो वो जो एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या होना का, कुछ तो आपके अंदर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अभी एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेटजीज भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी एंड नॉलेज जो आप में डेवलप होते हैं बच्चे, वो आपको तभी डेवलप होगा जब आप उसका स्टार्टिंग भी थोड़ा सा पहले से करेंगे। आपको आइडिया होगा, आपके बेसिक पहले फॉर्म हो चुका है, तो उसके ऊपर आप फाइन जो ट्यूनिंग्स होता है, फाइन जो वर्क्स होता है, वो आप कर पाते हो उस टाइम में। तो जो फाउंडेशन वाला आई थिंक क्वेश्चन था डॉक्टर सुमित शेट्टी के साथ, ये थोड़ा सा मैं ऐड करने चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको थोड़ा मेडिकल वाले बच्चों को भी बता देता हूँ कि जैसे हमारे एमबीबीएस के अंदर 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर कोई बच्चा लेट शुरू करता है पढ़ने में, जैसे हम डैम्स के अंदर एक कोर्स कहते हैं रेगुलर कोर्स होता है जिसको बच्चा 1 साल के लिए करता है, तो उसको 19 सब्जेक्ट 12 महीने में पढ़ने होते हैं, तो उसको एक मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन कई बच्चे जल्दी शुरू करते हैं, जैसा देवज्योति ने बताया कि कई बच्चे 3rd ईयर से शुरू करते हैं, 2nd ईयर से करते हैं, तो उसको 3 साल मिलते हैं उसको डिवाइड करने के लिए, तो उसकी डेप्थ में जा पाता है। जैसे हर किताब को, हर सब्जेक्ट के अंदर एक तो एक लेवल है जिसको आपको अचीव करना, एक गहराई है, डेप्थ है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप अपने लिए कम टाइम दोगे तो आप किसी भी चीज की डेप्थ में नहीं जा पाओगे, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में हल्का भी कमी होगी तो आप कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो फाइनल 2 चॉइसेस को रूल आउट करना है आप नहीं कर पाओगे, तो आप वो टॉप 100 के ब्रैकेट से बाहर आ जाओगे, टॉप 500 के ब्रैकेट से बाहर आ जाओगे। भाई, क्या आपने कभी ये सोचा कि जो बच्चे टॉप 100 आ रहे हैं, टॉप 500 आ रहे हैं, उनमें और बाकियों में क्या फर्क है? उनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर इतनी प्रिसाइजनेस है कि वो सही आंसर को ज्यादातर चुन पाते हैं और गलत आंसर्स पे नेगेटिव, मतलब सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे। जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी उतनी आपकी गलतियां होंगी पेपर में, वो गलतियां आपको पीछे खींच लेंगी। क्योंकि आपने देखा हो, मैं आई थिंक देवज्योति भी एग्री करेगा, नीट यूजी के अंदर खास तौर पे पेपर का लेवल थोड़ा सा ऐसा है कि इस समय कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी ला रहे हैं। इसका मतलब एक भी गलती नहीं कर रहे। हाँ, और आप तो अगर पिछले साल में 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे है ना, फुल यानी मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मार्क लाने का मतलब ये है कि पेपर डुएबल है, फुली डुएबल है। इसका मतलब आप तब हारोगे जब आप सिली मिस्टेक्स करोगे। सिली मिस्टेक्स आप तब करोगे जब या तो आप पूरा साल खाली सिर्फ हजारों लोगों से सिर्फ एडवाइसेस लेते रहे, आपने किया ही नहीं कुछ, या फिर आप तब हार रहे हो जब आपने अपने आप को हर चीज के अंदर सुपरफिशियल रख दिया, गहराई में जा ही नहीं पाए। इसलिए जो डॉक्टर देवज्योति ने बताया कि थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, तो फायदा मिलेगा, ताकि गहराई में तो जाओगे चीजों की। अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है तो गलतियां कम होती हैं, कम गलतियों से हम जीत पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ही सही बात है। और एक क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, दैट इज सर, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा इस तरह टाइप का क्वेश्चन आंसर किए हैं, मगर थोड़ा लगता है इसको हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। और बच्चे ने पूछ रहा है सर, व्हेन आई एम स्टार्टिंग देयर इज लाइक फर्स्ट 3 मंथ एक प्रिपरेशन होता है, ये पूछे है ब्रिस्टाई चक्रवर्ती ने। फर्स्ट 3 मंथ है, तो फर्स्ट 3 मंथ में हमारे प्रिपरेशन कुछ एक टाइप के होता है, नेक्स्ट 3 मंथ का प्रिपरेशन एक टाइप के होता है। ऐसे हम सोचेंगे क्या, मतलब 10 मंथ जो प्रिपरेशन में मिलता है, तो माइंडसेट, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, ओवरऑल जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है विद टाइम, कंपटीशन थोड़ा सा चेंज होता है। तो व्हाट आर द स्ट्राइकिंग थिंग्स जो मुझे ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट हाफ प्रिपरेशन, सेकंड हाफ प्रिपरेशन, या फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मेरा फोकस क्या होना चाहिए, सेकंड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में क्या फोकस होना चाहिए, एंड थर्ड पार्ट ऑफ जहां पर हम क्लोज कर रहे हैं प्रिपरेशन को, ऑलमोस्ट आई कैन से जहां पर हम लोग रिजल्ट या फिर एग्जाम के बहुत ही करीब है, उस टाइम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। मैं इसको बिल्कुल ही आपके लिए एकदम क्लियर कट आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि देखिए, जब भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक पहला फेज होगा जो थोड़ा लंबा फेज होगा, जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स भी बनाएंगे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। कॉन्सेप्ट्स भी बनाएंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी पहले फेज में तो आपने चीजों को समझना है, खाली मतलब याद करने से बात नहीं बढ़ेगी। तो मुझे चीजों में वाई जानना है या उनके लिंक जानने हैं। कई बार क्या होता है कि एक वर्ड आपने उसको रैंडमली याद करोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर उसके पीछे थोड़ी सी कहानी आ जाए, थोड़ा सा वाई आ जाए, लिंक आ जाए, तो याद हो जाता है। तो पहले फेज में आप इस तरह से कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, और प्रेफरेबली मेरा जो मानना है, बाकी हर एक का अपना अलग अलग मानना हो सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है, उस फेज में आपको अपने नोट्स अपने हाथ से खुद बना लेने चाहिए, लेक्चर को सुन के या जैसे भी आप बना रहे हैं, ताकि बाद में आपको वो लेक्चर को दोबारा नहीं सुनना। अगले फेज में हम उन नोट्स को रिवाइज करेंगे और टेस्ट देंगे। पहले फेज में हम एमसीक्यू कर रहे थे, सेकंड फेज में हम टेस्ट ज्यादा देंगे, और प्रेफरेबली टेस्ट वो देंगे जो फुल कोर्स हो, माने जो आपके एंड में, जैसे सपोज आप फाइनल 2 महीने में आ गए, आपके 2 महीने बाद नीट पीजी है, नीट यूजी है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके पैटर्न के, जैसे हमारे में हम उसे ग्रैंड टेस्ट कहते हैं हमारे पैटर्न में, तो आपने वो पेपर देने शुरू कर देने, ताकि आपको
पता हो एग्जाम कैसे फील होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूंगा, सोचूंगा कैसे, मार्क क्या करूंगा, उन स्किल्स को डेवलप करेंगे आप। और रिवीजन करके जो आपने 8 महीने में जो पहले फेज में सीखा, उसको 2 या 3 बार रिवाइज करके नोट्स को मैं अपनी मेमोरी के अंदर पक्का करता हूं, ताकि मेरा रिकॉल अच्छा हो। कोई भी जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं जो रिकॉल है, रिकॉल मतलब डायरेक्ट आ गए, क्लास में बताए थे डायरेक्ट आ गए, तो वो आपने कैप्चर किए नोट्स की रिवीजन से। दूसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो इनडायरेक्ट है, जहां पे जो टीचर ने पढ़ाया या नोट्स में जो दिया हुआ है वो चॉइसेस में तो है, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं है, आपको रूल आउट करना पड़ेगा। वो स्किल आपने डेवलप की पूरे साल एमसीक्यू करके, और सेकंड फेज में फुल कोर्स पेपर दे दे के आपने अपनी स्किल को डेवलप किया। इस पूरी स्किल में टाइम मैनेजमेंट को मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसलिए हार जाते हैं कि उनका टाइम मैनेजमेंट खराब होता है। तो टाइम में मैंने आंसर सही करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 दिन में करना है, उन्हीं 3 घंटे में ठीक करना है बेटा आपने। तो टाइम मैनेजमेंट करते हुए स्किल बनाते हुए, तो अगर ये पैटर्न आप पकड़ लो कि पहला फेज है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस, सेकंड फेज है टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अगर हम ये बना लेते हैं तो आप हमेशा कंपटीशन में जीते। बिल्कुल, बहुत ही सिंप्लीफाइड आंसर था। क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, मगर आंसर भी बहुत ही सिंप्लीफाइड एंड प्रैक्टिकल था। एंड दिस इज आई थिंक स्टूडेंट एवरीवन शुड फॉलो। जैसे हम लोग भी प्रेपमेंट में यही फोकस कराते हैं सब लोग को। हमारे जो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास होता है वो कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस होते हैं, सेकंड हाफ ऑफ द क्लास जो होते हैं वो क्विक रिविजन क्लासेस होते हैं, एंड टेस्ट। तो ये टेस्ट जो होता है, सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, ये किसी के क्वेश्चन है, मेरा खुद का क्वेश्चन है, आपका क्या मानना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेस्ट को स्किप करते हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्किप करते हैं वो लोग। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्किप करते करते एक टाइम ऐसे उन लोग का मानना ये होता है मेरे सिलेबस सर खत्म नहीं हुआ, दो टॉपिक छोड़ गए, 3 टॉपिक छूट गए, तो इसलिए एग्जाम नहीं बैठा। तो ये प्रिपरेशन फेज में जो एग्जाम स्किप करते बच्चे लोग, चाहे नीट पीजी में है या नीट यूजी में है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? इसमें ये प्रिपरेटरी फेज में एग्जाम करना। मैं इसको अगर एक इंग्लिश के वर्ड में हम इसे डिस्क्राइब करें, इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, करेक्ट, या परफेक्शनिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि कई बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि वो ना अपने जो रिजल्ट है या जो टेस्ट का रिजल्ट है उसको देखने से वो डरते हैं, क्योंकि उनकी अपने खुद के प्रति एक बड़ी परफेक्ट आउटकम की डिजायर होती है। ये खासतौर पे होशियार बच्चों में देखा है मैंने, और उनको ये बात जरूरी है सुनने। अगर आप आज मेरी बात सुन रहे हैं तो बड़ी क्रिटिकल बात है आपके लिए। कई बच्चे जो बहुत ही होशियार हैं, मतलब मैं देखता हूँ बहुत ही होशियार हैं, लेकिन टेस्ट से डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं इतना होशियार हूं, मैंने मेरी मेंटल पिक्चर इतनी परफेक्ट बनाई है, पेपर में गलती होगी तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, और इस कारण से वो टेस्ट ही नहीं दे रहे होते। इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, कि मैं करूंगा तो बढ़िया करूंगा, कर कुछ नहीं रहा हूं। तो अब इन कारणों से क्या होता है, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो ये एक फियर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और आप उन्हें और आगे पुश करते जाओगे। आप अपने आप को ये बहाना देने लग जाओगे, सिलेबस खत्म होगा ना तब टेस्ट दूंगा, लेकिन सिलेबस खत्म हो ही नहीं पाता। ये पता नहीं क्या सिलेबस बनाते हैं कॉलेज वाले, स्कूल वाले, सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता। यानी सिलेबस खत्म हुआ नहीं, टेस्ट हुआ नहीं, आपने कभी टेस्ट दिया नहीं, पहला टेस्ट आपने सीधा एग्जाम दे दिया, तो आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि ना आपने टाइम मैनेजमेंट में काम किया, ना आपने एग्जाम स्किल डेवलप की, और आपने अपनी रैंक पीछे कर ली। और मैं पूरी बात सुनिए, आपने रैंक पीछे कर ली, अब आपका एमबीबीएस की जगह आपको सपोज बीडीएस मिल गया, या बीडीएस की जगह आप फिजियोथेरेपी आ गया, आप पीछे आ गए। अब क्या होता है, आपके अपने अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है। अब आप हर कंपटीशन से डरना शुरू हो जाते हो कि नहीं यार, एमसीक्यू के अंदर मैं निकाल नहीं पाता। ये विशेष साइकिल के अंदर मैंने बहुत बच्चों की मदद भी की, और बहुत सारे बच्चों को फंसा हुआ भी देखा। तो मैं चाहता हूं आप अपने टीचर की, मेंटर की, दोस्त की, जो भी आप मुझे माने, उसकी एडवाइस मानिए। टेस्ट को डे 1 से ही अपने शेड्यूल में डाल लीजिए। टेस्ट को अवॉइड करोगे कभी नहीं जीत पाओगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इसको इस तरह सोचो कि कल सपोज करो इंडिया की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में खेलने जाना है, तो ऐसा थोड़ी होगा सीधा वर्ल्ड कप खेलेंगे। उससे पहले स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे टूर्नामेंट खेलेंगे, रणजी मैच होंगे, फिर नेशनल लेवल पे पहुंचेंगे, फिर इंटरनेशनल जाएंगे, वहां जाके भी काउंटी खेलेंगे, फिर जाके फाइनल मैच खेलेंगे। यानी मैच तो खेलने की आदत डालनी पड़ेगी ना, जिसको फॉर्म कहते हैं। इवन सचिन तेंदुलकर भी अगर महान क्रिकेटर होने के बाद भी सीधा 1 साल के बाद सीधा बैटिंग करने जाए तो एक बॉल लगती है, आउट हो जाता है आदमी, पूरा वो मैच खराब हो जाता है। तो टेस्ट की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। टेस्ट से डरो नहीं, आउटकम से मत डरो। मैं इस माइंडसेट को मैं आपको बताता हूं, इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, कि हम किसी भी टेस्ट का आउटकम है, या तो आपका अच्छा होगा या आप कुछ सीखोगे। हार नहीं हो रही, वो तो एक टेस्ट है, असली एग्जाम तो बाद में होना है। या तो आपका अच्छा होगा या आप कुछ सीखोगे। अगर आप कुछ सीखे तो अगली बार कम गलतियां होंगी। सो इस माइंडसेट से आपने रखना है कि मैं सीख रहा हूं। मैं अपने लिए, मेरे पूरी जिंदगी में मेरा एक ही गोल है,
मैं आज भी जब आपके साथ ये सेमिनार रख रहा हूं तो मैं भी सोच सकता हूं कि जिस दिन परफेक्ट तैयारी होगी उस दिन सेमिनार लूंगा, नहीं तो मैं लूंगा ही नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ सीखेंगे, कुछ बच्चों से कुछ बात होगी, कुछ वो क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ देवज्योति से सीखेंगे, कुछ इन लोगों सबसे हम मिलकर कुछ सीखेंगे और वो सीख के आगे इंप्लीमेंट करते रहेंगे। तो आपने लर्नर बनना है, ये लर्नर माइंडसेट बहुत जरूरी है यहाँ पे। नहीं तो आप डरते रहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। लेकिन आप अपने अंदर एक सेल्फ डाउट ले आएंगे जो आपके पूरे करियर को, क्योंकि पूरे ही मेडिकल करियर में एमसीक्यू एग्जाम्स आते रहेंगे। आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिका के लिए एमसीक्यू एग्जाम लेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले अलग एग्जाम लेते हैं, दुबई में अलग एग्जाम है, सिंगापुर का अलग एग्जाम है, इंडिया का अलग एग्जाम। तो एमसीक्यू से डरोगे तो फिर वो डर अंदर बैठ जाएगा, फिर वो सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है। टेस्ट से मत डरो। बिल्कुल। सो ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ लर्नर एंड जिंदगी में हमेशा लर्नर ही होते रहो एंड ऑलवेज नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, जो सिस्टम चल रहा है उसको ही कंटिन्यू करो। जैसे हमारे भी सर, हम प्रेपमेट में वो हमारे एक एफर्ट मिरर नाम की एक चीज़ होता है जहाँ पर बच्चे लोग एग्जाम देने के बाद खुद उसको रिप्लिकेट करते हैं, दैट हाउ लाइक सिली मिस्टेक, डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्टेक एंड दे मेक समथिंग अ ग्राफ टाइप ऑफ थिंग। सो उनको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि मेरे पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स क्या होते हैं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स। तो इससे उन लोग को बहुत हेल्प भी मिलता है और बच्चे लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। सो दिस इज समथिंग बिल्कुल सेम। हम डैम्स के अंदर जो हमारा जो पैटर्न है वो आपको बताता हूँ। हमारे हर टेस्ट के अंदर एक लीडर बोर्ड आता है। वो लीडर बोर्ड के अंदर क्या होता है, हमारे जो ऐप, जो ई मेडिकोस ऐप पीछे देख रहे हैं, इसके अंदर जो 3 बच्चे टॉप होते हैं उसकी फोटो आती है। फिर 4 से 10 वालों के नाम बड़े बड़े लिखे जाते हैं, टॉप 100 को थोड़ा सा लिस्ट में रखा जाता है नाम। तो हर बच्चा कोशिश करता है कि मुझे यहाँ लीडर बोर्ड में पहुंचना है, और अगर वो नहीं पहुंच पाए तो उसको नेगेटिव नहीं लेता, कहता अगली बार पहुंचूंगा। तो इस तरह से वो मतलब एक गेमिफिकेशन की तरह आपको सोचना पड़ेगा कि मैं सीख रहा हूं, हर बार सीख रहा हूं और धीरे धीरे इंप्रूव कर जाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूरी आपने समझना है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं जो पहला मैच खेलूंगा उसी दिन चैंपियन बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी आप देखेंगे पहले मैचेस में वो 0 पे आउट हुए होते हैं। कई बच्चे भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखता हूं जो नॉट क्वालिफाइड से अगली बार टॉप 50 में आ जाते हैं, टॉप 10 में आते हैं, यानी इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। तो आप डरिए मत टेस्ट देने से, कहीं ये मत सोचें कि टेस्ट दे दिया खराब हो गया मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ऐसा ना सोचें। बिल्कुल, बिल्कुल ही। तो आप लोग को ये कंटिन्यू रखना चाहिए और आपकी जो मिस्टेक्स है उसको मत रिपीट कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए नोट डाउन कर सकते हो आप, किसी भी आपके कॉपीज है जहाँ पर आपके मिस्टेक्स के जो पैटर्न होते हैं, हम लोग का कुछ रिकॉल मिस्टेक होता है, एक पैटर्न्स ऑफ मिस्टेक होते हैं, उस पैटर्न ऑफ मिस्टेक को आप आइडेंटिफाई कीजिए, हर दिन उसको आप उसको नोट कीजिए एंड उसको दोबारा रिपीट मत कीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, जो कि क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स एंड नीट यूजी। तो क्वेश्चन बच्चे किसी को टैग नहीं किया है, तो सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? ये कॉमन प्रॉब्लम है क्या? मतलब फ्रेशर्स जो होते हैं, आई थिंक हम थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं नीट पीजी के किसी मतलब एस्पेक्ट में भी, क्या जो फ्रेशर्स लोग होते हैं उन लोग का थोड़ा सा ये मतलब बोर्ड एग्जाम्स या फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स जो होते हैं उसके साथ थोड़ा सा उनको क्लैशेस लगता है क्या? मतलब if I focus completely on my NEET exam, then it might be possible that मेरा जो प्रोफेशनल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम खराब हो जाएगा। सर इससे आपका क्या मानना है? देखो, पहली बात तो ये है कि एक हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे सामने सिचुएशन क्या है। सपोज करो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप डॉक्टर बन के पोस्ट ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, आप टॉप ब्रांच में एम्स में जाना चाहते हैं, तो ये बात कॉम्पिटिटिव है। कोई भी चीज कॉम्पिटिटिव होगी तो थोड़ा तो उसमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। अब मैं बोलूं कि नहीं यार, एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो बोलेंगे, मतलब मैं ये बात मैं कई बच्चों को बताता हूँ, कई बच्चे जो होते हैं कहते हैं कि सर आप ऐसा, मैं उन्हें कहता हूँ क्या आप ऐसा सोचते हो कि एक दिन कॉलेज में आपको बोलेंगे चल बेटा ये 2 हफ्ते आपने पीजी के लिए पढ़ना है? ऐसा थोड़ी होता है। या कभी स्कूल में बोलेंगे अभी आपने पीएमटी के लिए पढ़ना है, अब ऐसा पढ़ना है? ऐसा तो समय तो खुद ही निकालना पड़ता है। सपनों का समय आपने खुद निकालना। ये एक एक्सेप्टेंस जो है ना, आपने एक बार कर ली, टाइम अपने आप निकल जाएगा। मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, कई बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं कंपटीशन के लिए टाइम कैसे निकालूं? तो मैं कहता हूँ अभी आपने अमेजॉन प्राइम पे नई पिक्चर आई, देख ली आपने? वो कहता देख ली। मैं कहता वेब सीरीज देख ली? या नहीं देख ली। मतलब जो चीज तू करना चाहता है हर चीज में तेरे को टाइम मिल गया, यानी टाइम तो है ही। हमारी जिंदगी की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर चीज के लिए टाइम है हमारे पास, जो हम सच में हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखते हैं। कई बच्चे आते हैं, कहते सर डांस की क्लास में आऊंगा, टाइम लग जाएगा। इमीडिएटली उसका दोस्त आता है, चल पिक्चर देखने चलते हैं, वहां चला जाता है। मैं कहता हूँ 3 घंटे तुझे मिल गए, यहाँ मेरे पास पढ़ने के लिए तुझे नहीं मिल रहे थे।
आप समझ रहे हैं? तो ये माइंडसेट को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। समय है, समय आप प्रोफेशनल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बैलेंस कर सकते हैं, और कई बच्चे कर भी रहे हैं। हर साल आप देख ही रहे हैं कि कई बच्चे वो करते हुए टॉप में मार्क्स भी ला रहे हैं। तो लोग कर पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? प्रायोरिटी में ऊपर लाना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्या से मैं समझाता हूं क्या छोड़ना पड़ेगा। बहुत कुछ नहीं सेक्रीफाइस करना, घबराए नहीं आप। सपनों के लिए जब आप जा रहे होते हैं, तो उस समय पे सपोज 6 महीने बाद आपका पेपर है मेरे दोस्त, उस समय अगर आपको, जैसे एक बच्चा आया मेरे पास, मैं क्लास ले रहा था टाइम्स में, एक लेक्चर ले रहा था, एक बच्चा आया कहता है कि सर मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने उसकी बात को थोड़ा सा अनदेखा कर दिया। फिर मैंने पूछा, अच्छा तूने वो मिर्जापुर देखा? हाँ देख लिया। मैंने ये देखा, वो देख लिया। हाँ। मैंने सारी दुनिया के, तूने कोई सीरियल नहीं छोड़ा, साला पढ़ने का टाइम तुझे मिलेगा कैसे? आप समझ रहे मेरी बात? तो कुछ तो छोड़ोगे भाई। अगर 6 महीने बाद पेपर आ रहा है, कुछ को तो छोड़ना पड़ेगा, और वो बातें आपको बाद में रिग्रेट नहीं होंगी। ये आज से 10 साल बाद आपको कौन सी वेब सीरीज में क्या आया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सही जगह पहुंचे होगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो, इसको ना साइंटिफिकली भी डिफाइन किया गया है कि जब हम, कई बार क्या होता है, वीडियो गेम खेल रहे हैं तो मजा आ रहे हैं, वो हमारे ब्रेन में डोपामीन किक हमें दे रही है, और वो एडिक्ट कर लेती है हमें। उसी प्रकार वेब सीरीज है या कोई भी चीज हमें एडिक्ट कर रही है, और उससे हमें लग रहा है हमें खुशी मिल रही है, जबकि वो खुशी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। बड़ी एग्जैक्टली। खुशी आपको सपने हासिल करने से मिलती है, जो कि थोड़ी मेहनत से मिलती है, इसलिए कई लोग उस तरफ नहीं जा पाते। अब आप खुद से सोच के बताओ कि दुनिया में अगर हम सक्सेसफुल लोग देखते हैं तो हमेशा परसेंटेज कम क्यों है? क्योंकि वो थोड़ा मेहनत का रास्ता है। शॉर्ट टर्म खुशी तो 2 मिनट में मिल जाएगी। आप अभी जोमेटो पे एक पिज्जा ऑर्डर करो, ठीक है दोस्त, एक वेब सीरीज चला ले, कोई स्टैंड अप कॉमेडी सुन लो, किसी की भी हम कहानी सुन लेते हैं। आप आपकी चॉइस है, आप बोलो छोड़ यार, यहाँ पे ये तो पीजी की एग्जाम की या यूजी के एग्जाम के बारे में बता रहे हैं, ये चैनल हटाते हैं, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, एक पिज्जा खाते हैं। यानी खाए और दिमाग को लगा बढ़िया सुकून है, आपको खुश हो गए, तो सपने भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग सपने भूल जाते हैं, ज्यादातर लोग बड़े सपने परस्यू ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो भूल जाते हैं, फिर वो जिंदगी की भीड़ में खो जाते हैं, उन सपने को पा ही नहीं पाता। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इस तरह से आपने बार बार अपने विजन को रिकैलिब्रेट करना है। क्या आपके सारे एक्शन आपके शॉर्ट टर्म की तरफ ही फोकस हो गए हैं? क्या आप बड़ी पिक्चर को भूल गए हो? बड़ी पिक्चर सोचोगे तो सब बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये इतनी बड़ी बात नहीं जितना हम इसको बना देते हैं कि बोर्ड का एग्जाम आ रहा है सर क्या करूं, कोई बात नहीं, उसमें भी पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, बैठ के पढ़। एक बार थोड़ा सा पॉइंट्स को शॉर्ट नोट की तरह लिख ले, एक बार थोड़ा सा एमसीक्यू की तरह कर ले, क्यों नहीं कर सकते? जब करना चाहते हैं तो जरूर कर लेंगे। तो थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करेंगे, मेरा मेरा ये मानना। बिल्कुल। बिल्कुल ही सही है। तो जो भी अब लोग मतलब बहुत बच्चे पूछते हो क्या मतलब बैलेंस कैसे करूँ बोर्ड्स के साथ नीट का, या फिर प्रोफेशनल एग्जाम के साथ नीट पीजी के प्रिपरेशन, सर यही सेड। यही मैं, आप बिल्कुल आगे भी पूछेंगे लोग कि सर जॉब करूं कि बिजनेस करूं, बिजनेस करूं तो आगे बढ़ा पाऊंगा कि नहीं बढ़ा पाऊंगा, स्टार्टअप जाऊं कि ना जाऊं। ये आप, मतलब आप करना चाहते हैं, अगर आपका वाई है, आपका सपना है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, करते हैं। या फिर बैठ के पिज्जा खाओ और वेब सीरीज देखते रहो और सोचो खुशी मिल रही है, कुछ नहीं मिलेगा थोड़े दिन बाद। और यही पैसिव कंजम्पशन ऑफ कंटेंट जो होता है, या पैसिव डोपामीन जो हम बार बार अपने आप को दे रहे हैं, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल ही करते रहे, पूरी रात हो गई, है ना? तो उससे ना कोई रिश्ता बना, आपने लाइक किया लेकिन उससे रिश्ता बना नहीं, वो लगा आपको बना, लेकिन बना भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है मीनिंगफुल चीजों की तरफ बढ़ने में, मीनिंगफुल रिश्ते, मीनिंगफुल सपनों की तरफ बढ़ने में ही सक्सेस है। करेक्ट। सो योर मंत्रा इज लेट्स डू इट। ठीक है, ऐसे नहीं क्या मतलब किसी कोई कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, आप खुद कुछ करो। ठीक है, दैट्स समथिंग यू हैव टू डू। Like try to become the Facebook innovator, not the Facebook viewer. So this is something. Sir, एक specific question आया है, that is how to overcome the calculations and the numerical fear. तो आपके जितने सर नीट यूजी के साथ जितने आपको लग रहा है कुछ स्पेसिफिक आंसर जो आप करना चाहते हैं, उसके बाद मैं तो कुछ ऐड कर दूंगा, मगर इसके पहले आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? देखो, मुझे लगता है कि जो, आई थिंक ये बच्चा जो पूछ रहा है, कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो प्राइमरीली वो प्रैक्टिस का गेम है। अगर आपने कोई भी तरह की कैलकुलेशंस को पहले करने की आदत डाली होती है तो हम अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो एमसीक्यू एग्जाम के अंदर क्या होता है, 4 चॉइस होती हैं, और अगर आप कोई भी इक्वेशन को गलत सॉल्व करोगे तो भी एक चॉइस आपके लिए बनाई होगी एग्जामिनर ने। ये बहुत जरूरी है समझना, कई बच्चे ये बात नहीं समझ पाते। देखिए, 4 चॉइस एग्जामिनर कैसे बनाता है कि एक इक्वेशन है, अगर आप सही सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर पे पहुंचोगे, एक गलत वेरिएबल लगाओगे तो सी पे पहुंच जाओगे, एक गलत लगाओगे तो ए पे पहुंचोगे। यानी आप जिस रास्ते, गलत रास्ते से जाओगे तो भी आपके लिए एग्जामिनर ने चॉइस बना रखी होती है। तो अगर पहले आदत नहीं डाली होगी, प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो आपको पेपर वाले दिन सिली मिस्टेक्स कर बैठेंगे। तो मुझे ये लगता है कि
कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर जहां अगर करना है तो प्रैक्टिस है। अगर उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपका मतलब है कोई डेटा के ऊपर मेमोरी वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्करेज किया जा रहा है। कि सभी लोग कहते हैं, जितने भी एजुकेशन के अंदर सेक्टर में लोग हैं, सब कहते हैं कि खाली एक वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। क्वेश्चन जैसे किस साल में ये इन्वेंशन हुई, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे और कम भी होने चाहिए, मुझे लगता है। एग्जैक्टली सर। तो नीट यूजी के लिए मैं स्पेशली एक थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ इसके साथ। आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहले ये है कि आप लोग जो फॉर्मूलाज हैं उनको देखिए। कुछ तो बेसिक फॉर्मूलाज होगा जो आपको याद रखना होगा, और उस बेसिक फॉर्मूला के लिए बेटा आप एक काम कर सकते हैं। जैसे कुछ आपके नोट कॉपीज हो सकते हैं, या फिर आपके एक बड़ा सा कैलेंडर हो सकता है जिसके पीछे कोई, या फिर आर्ट पेपर टाइप के कुछ हो सकते हैं, जहां पर जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए, उसको पहले लिख लो अच्छे से। और हर दिन उसको, या फिर किसी भी जो प्रैक्टिस एग्जाम है उसके पहले उसको देख लो, और वो देखने के बाद एग्जाम में आप अपियर करो। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आपके ये फॉर्मूलाज को जो कंफ्यूजन होते हैं वो एकदम नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यूज विथ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। ये जो प्रॉब्लम आपका आ रही है, कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल जो एरर्स जो आ रहे हैं आपको, ये बहुत कम हो जाएगा। जितने बच्चे मैं अभी तक जितने बात किया, लगभग मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स आई हैव टॉक्ड टिल नाउ। तो सारे बच्चे को मैं एक ही सोल्यूशन देता हूँ, और रिजल्ट भी मिला है उससे बहुत सारे को। क्या डू प्रैक्टिस एमसीक्यूज मोर, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन करो, और फॉर्मूला को भूलना नहीं बेटा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फॉर्मूला में, ठीक है। और जैसे सर ने भी बताया कि अभी जो क्वेश्चंस होता है तो फॉर्मूला बेस्ड उतना होता नहीं है जनरली, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर डायग्राम इसके ऊपर आधार करके होता है। मगर जितने भी आपके न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ तो क्वेश्चन आएगा, उसको आपको सॉल्व करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके जो फॉर्मूला है उसको याद आना चाहिए, एंड उसको वैल्यूज पुट करने के जो बाद जो फाइनल कैलकुलेशन है उसने तक रीच करने के लिए यू नीड रेगुलर प्रैक्टिस। ओके, एक और क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है फिजिक्स की क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो होते हैं, तो इनमें हमको सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द माइंड सेट टू अटेम्प्ट। तीनों सब्जेक्ट होता है, एक घंटे करके मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। व्हाट शुड बी अटेम्प्टेड फर्स्ट? आई थिंक आपका क्या मानना है, आप बताएं। सर मेरे ख्याल से दिस इज अ गेम ऑफ टाइम। सो इफ यू आर क्वाइट, जो भी होना है इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि विद टाइम आई शुड गेट सम स्कोर। टाइम आगे जा रहे हैं, मुझे स्कोर आना चाहिए। तो इस पैटर्न से सर मेरे ख्याल तो यह है, क्या जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन बायोलॉजी। एंड जितने भी मेरे बच्चे भी था जो अभी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में है, मेडिकल कॉलेजेस में है, वो भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। क्या दे डू अटेम्प्ट बायोलॉजी फर्स्ट, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनका मानना है जो डिफिकल्ट है उसको पहले कर लेता हूं, बायोलॉजी का टाइम कंजम्पशन कम होता है तो एंड में करता हूं। बट सर विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड जैसे फीडबैक मिलता है बच्चे लोग से, वो बताते हैं सर पहले आपके स्कोर आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा जो मेंटल जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या मुझे तो पूरे जो बायोलॉजी था बहुत ही अच्छा पेपर गया है मेरे, अभी हाफ ऑफ द टाइम हैज गॉन, या फिर 1 घंटे चला गया और मुझे स्कोर भी काफी हद तक अच्छा आ चुका है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो कॉन्फिडेंस मिलता है, उसके साथ आप सेकेंड जो पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मेरे ख्याल से सर वो पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, जो सबसे कॉन्फिडेंट हो उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फिडेंट, एंड जो सबसे कम कॉन्फिडेंट हो मेरे ख्याल से वो लास्ट में करना चाहिए, ताकि विद टाइम आपको स्कोर मिले। क्योंकि अभी सर जो पैटर्न है ये तो +4-1 वाला गेम है, चाहे नीट पीजी है या नीट यूजी। +4-1 यानी कि क्वेश्चन सही करने से 4 मिलता है और गलत होने से 1। जो रिसेंट एग्जाम्स में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है नीट पीजी के केस में, वो आप बता सकते हैं और भी अच्छे। और मैं नीट यूजी के लिए बताऊंगा, आपके +4-1 वाला गेम है, तो आप, और ऐसे भी बच्चे लोग अभी थोड़ा सा अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो ये सबको मैं कॉमन मैसेज देना चाहता हूं बेटा, रॉन्ग करने के जो आपके फियर ऑफ फेलियर होते हैं उसको थोड़ा सा कम करो, ज्यादा करेक्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि जो गैप है यहाँ पर +4 और -1, ये जो गैप है इसको आप इजीली रिकवर कर पाओगे। और इतना ही नहीं, आपके जितने सारे फ्रेंड्स है जो आपके जिसको एमबीबीएस सीट निकलेगा, वो लोग सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और इसीलिए धीरे धीरे जो कट ऑफ होता है वो भी हाई होते जा रहा है। तो ये तो मेरे मानना है, और डॉक्टर सुमेश शेट्टी अभी ऐड करेंगे।
यहाँ दो भाग हैं, दोनों बातें ही आई थिंक मेरा थोड़ा सा इसमें अलग मानना है कि मैंने मेरी जिंदगी में हर एग्जाम को पहले क्वेश्चन से शुरू किया है। जो एग्जामिनर ने पहला क्वेश्चन दिया मैं वहीं से शुरू करता हूँ, वहीं पे एंड कर, उसे पहले से आखिरी पे जाता हूँ। इससे ना सिंप्लीफाइड अप्रोच रहता है। मेरा ये मानना है कि एक तो तरीका है जो डॉक्टर देवज्योति ने बताया, ये आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी आप जो पहले ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो भी आप प्रकार के पहले फुल कोर्स पेपर देते हैं, उनमें ये मेथड को ट्राई कर लो कि आपके लिए क्या बैठ रहा है, फिर उसी को फॉलो करते रहो। जैसे मेरा मेथड है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, मैं पहले क्वेश्चन शुरू करता हूँ, मैं बल्कि मैं हर किताब पहले पढ़ने शुरू, मेरा मतलब एक ही आइडिया है कि पहले से शुरू कर एंड तक जाना है, मतलब ऐसे ही जाता हूँ मैं। तो इससे कि मेरे लिए पेपर वाले दिन कोई कंफ्यूजन नहीं होती मुझे कि कैसे करना है, मैं तो पेपर जैसे खोला वहां शुरू कर दिया बस। तो ये मेरा सिंपल मेथड होने से कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है, कोई मैं मिसमैनेज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसे करना तो है ही। मतलब मेरा हमेशा मानना है कि पेपर में अगर ए बी सी तीन सब्जेक्ट आ रहे हैं, देने तो तीनों ही हैं, मतलब एक आधे घंटे बाद एक पहले, क्या मतलब देने तो हैं। तो मैं तो शुरू उससे करता हूँ, लेकिन हर एक का अपना मानना है और उसमें हर कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाता है। दूसरी जो एक बात है, जो आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर देवज्योति ने यहाँ पे उठाई है, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, इंडिया के अंदर ज्यादातर पेपर में +4 मिलता है ठीक होने पे, गलत होने पे -1 होता है। अब ये कई बच्चे इस -1 को अपने दिमाग में ओवरवेल्म हो जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होनी है, हे भगवान पता नहीं क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होनी है, और वो एकदम ही डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन जब अगर आप हर बॉल को डिफेंड कर दोगे तो कोई रन ही नहीं पाएंगे आपके, स्कोर कैसे बनेगा? तो यानी बॉल खेलनी पड़ेगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, ये बच्चे समझते नहीं है। जो कई बच्चे होते हैं सोचते हैं कि जो टॉप कर रहा है बच्चा उसको सारे आंसर आते हैं, गलत। वो सारे आंसर तक पहुंच पा रहा है। यानी पेपर के अंदर कई क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली आपको आंसर आता हो, लेकिन कई क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली आपको नहीं आता होगा। एक एक चॉइस रूल आउट कर करके आप आंसर तक पहुंचोगे। यानी उसको कहते हैं एमसीक्यू स्किल। यानी हमें एमसीक्यू के आंसर तक पहुंचना है, लेकिन अगर आप नेगेटिव से डर के छोड़ ही दोगे तो बात नहीं बनेगी। यानी अगर 4 चॉइस हैं तो करेक्ट आंसर लाने की मेरी सपोज प्रोबेबिलिटी 25% है, एक रूल आउट होने के बाद वो प्रोबेबिलिटी टू गेट करेक्ट बिकम्स 33%। 2 रूल आउट हो गए तो 50% चांस है कि मैं ठीक करूंगा। इतना गैम्बल तो खेलना ही पड़ेगा जिंदगी में। तो हमें थोड़ा एग्रेशन जो होता है, एक मतलब पढ़ने के बाद, मैं 1 मिनट इसको करेक्ट कर दूं, अगर आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं है तो चाहे आप कोई भी टेक्निक लगा लो, आप नहीं जीत पाओगे। ये मैंने ऐसा नहीं कहना कि सर ने कहा था ज्यादा मार्क करने हैं तो मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं, मार्क कर दी, मेरा क्यों नहीं हुआ। वो पढ़ाई नहीं, पढ़ने के बाद जब 2 बच्चे बराबर पढ़ लेते हैं, जो थोड़ा सा एमसीक्यू स्किल को एग्रेसिवली इस्तेमाल करता है, उसकी रैंक ज्यादा आती है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, एकदम ही सही है। आपको मतलब ऐसा नहीं क्या, यू हैव टू ऑल्सो स्टडी हार्ड, और तभी आपकी जो इंट्यूशन भी होता है वो भी अच्छे होता है, मतलब करेक्ट इंट्यूशन होता है। आप जो मतलब गेस करते हो, आपके गेस भी करेक्ट गेस होते हैं, सक्सेसफुल गेस होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग, ये जाह्नवी मुखोपाध्याय का क्वेश्चन था तो हमने उठाया और उसको डिस्कशन भी किया। सर हम लोग थोड़े से और दूसरे सेगमेंट ऑफ डिस्कशन पे जा रहे हैं अभी, दैट इज सर नेक्स्ट। क्योंकि बहुत बच्चे हमारे यहाँ पर जो आज के सेशन देख रहे हैं वो अभी इस साल एमबीबीएस में जा रहा है, उनको भी माइंडसेट एक होना चाहिए प्रॉपरली, क्या मतलब किस तरीकों से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, नेक्स्ट क्या है। तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए, क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन टू गिव दैट ओवरव्यू। नहीं, ये ना एक्चुअली में मुझे लगता है जो बच्चे इस साल एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली में ये होना चाहिए, और उन्हें पता होना चाहिए। मैं उसको ब्रॉडली डिवाइड करता हूँ। एक तो कल परसों में एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक वार्निंग इशू की है, और ये बच्चे जो आज हमें सुन रहे हैं अगर बाद में भी किसी के काम आ जाए तो इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पे एमबीबीएस में ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उसको वो मान्यता नहीं देंगे, और उनका इशारा था चाइना की तरफ, क्योंकि कई चाइनीज यूनिवर्सिटी में बच्चे जहां एमबीबीएस करने जा रहे हैं, अब पिछले कोविड के कारण वहां बच्चे जा नहीं रहे और वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक बात है, पता होना चाहिए। अगर आप अभी वहां ऑप्ट कर रहे हैं तो एनएमसी ने वार्न किया है कि आप ना करें, हम उसको मान्यता नहीं देंगे ऑनलाइन एजुकेशन को। पहली बात तो ये। दूसरी जो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट का एग्जाम आपके लिए 2 पर्पस के लिए होगा, लाइसेंसिंग और उसका आपका पीजी की सीट। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये स्कूल के बच्चे कई बार इस बात को नहीं समझ पाते कि 2 चीजें होती है टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, या जो हम मेडिकल एजुकेशन के अंदर जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। 2 चीजें होती है, एक होती है डिग्री जो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, एक होती है लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन, जिसको इंडिया में पहले बिना एग्जाम के दे दिया जाता था। पहले क्या होता था, जब डॉक्टर देवज्योति ने ग्रेजुएट किया या मैंने ग्रेजुएट किया, हमारे समय पे हमने अगर कॉलेज का एग्जाम पास कर दिया, हम ग्रेजुएट हो गए, हमें डिग्री मिल गई। डिग्री के साथ साथ मेडिकल काउंसिल लाइसेंस भी दे देती थी, ठीक है।
अब जो नया चेंज इंडिया में आया है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस की, जो आपने प्रधानमंत्री की भी आपने स्टेटमेंट देखी हो, उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजेस को पिछले 10 साल में बहुत नंबर बढ़ गया है और आने वाले 10 साल में और ज्यादा बढ़ेगा। तो मेडिकल की सीटें बढ़ाते जा रहे हैं। अब अगर सीटें बढ़ेंगी तो जैसे ही सीट बढ़ती है, किसी भी कमोडिटी की मात्रा बहुत बढ़ती है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या वो क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। मतलब अगर आप हजारों लोगों को पढ़ा रहे हो तो क्या वो क्वालिटी रहेगी। तो क्वालिटी को चेक करने के लिए उन्होंने लाइसेंस के ऊपर एग्जाम लगा दिया। यानी आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंडिया में अब्रॉड में, आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन उस डिग्री के आधार पे आप डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास मेडिकल काउंसिल का, एनएमसी का लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस, जिसको वो लाइसेंस पहले बिना एग्जाम के मिलता था, वो नेक्स्ट पास करने पे मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इसको आप सीरियसली लेना। आपके कॉलेज में सीनियर आपके जो मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत ही मतलब आपको, कई बच्चे जो होते हैं सीनियर को भगवान की तरह देखने लग जाते हैं, सीनियर कह रहा है बस पढ़ना नहीं है, ऐश करनी है, लेकिन जब एग्जाम में लग जाती है तो फिर वो सीनियर तो आगे बढ़ चुका होता है। तो मेडिकल कॉलेज में भी दो प्रकार के सीनियर होते हैं। एक ऑनेस्टली बता रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, एक बिल्कुल ऐसे ही मतलब टशन मार रहे होते हैं। टशन मारना मतलब कैसे, मतलब आई डोंट नो उसको कैसे आप, मैं आपके सरल भाषा में लाऊं कि मतलब कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जिन्हें आपको इंप्रेस करना है। वो कहता है अरे कुछ नहीं, आखिरी 2 दिन में पढ़ लियो, हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, आप 6 महीने पीछे हो जाएंगे जिंदगी में अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो वो आपको, कई लोग ऐसा बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, जबकि ये एक लॉ है हिंदुस्तान में, इसका इंप्लीमेंटेशन होना ही है कि नेक्स्ट का एग्जाम आना है। तो अब नेक्स्ट को सोच लेते हैं। नेक्स्ट के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 की 2 स्टेज होंगी इस साल एमबीबीएस के लिए। अभी 2 दिन पहले इसकी अनाउंसमेंट आई है। पहली स्टेज होगी आपके सेकंड प्रॉफ के बाद, जिसमें 7 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड, जहां फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। कॉलेज के एग्जाम से अलग होगा, ये पूरे कंट्री में एक ही एग्जाम होगा। पास करोगे तो नेक्स्ट का स्टेज 1 पास हो गया। फाइनल ईयर के बाद स्टेज 2 होगी। पीजी की जो सीट है वो स्टेज 2 के स्कोर के आधार पर मिलेगी। इंटर्नशिप के बाद फिर से एक बार और एग्जाम लेंगे, जिसमें स्किल चेक करेंगे कि आपने स्किल एक्वायर की कि नहीं, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट 2 कहेंगे। तो ये एक सीरियस चेंज है और मुझे लगता है इसको किसी भी बच्चे को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार सीनियर का तो निकल रहा था, लेकिन आप देखिए पहले एग्जाम था ही नहीं। ये पहले नीट पीजी एक ऑप्शनल एग्जाम है। ऑप्शनल एग्जाम मतलब कि जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है उसको नीट पीजी देना है। नेक्स्ट एक मैंडेटरी एग्जाम है जो हर मेडिकल स्टूडेंट को मैंडेटरी पास करना पड़ेगा। यदि पास नहीं करेगा तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन नहीं मिलेगा। तो इसको मैं चाहता हूं, आई थिंक मैंने ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया इसके पार्ट्स का भी, लेकिन इसको लाइटली मत ले, मेरा जो बड़ा एडवाइस है। क्योंकि कई बार आपको सीनियर मिलेगा, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं, नेक्स्ट चल बैठते मजे करते, तो ऐसा ना सोचें। एग्जाम्स को या गवर्नमेंट पॉलिसी को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जिस प्रकार से आज से 3 साल या कुछ साल पहले ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो ट्रेड करते हैं लोग, जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो है, उनको लोग कहते थे कि एक दिन इंडिया में जीएसटी नाम का कानून आ जाएगा। जीएसटी नाम का एक ही टैक्स होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो वो मानते ही नहीं थे, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, हर स्टेट का अलग होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मानते ही नहीं थे। एक दिन आ गया, आप सारे कागज भरने पड़ गए सबको। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नेक्स्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, डॉक्टर को लाइसेंसिंग के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। अब कई लोग होते हैं कहते हैं ऐसा कुछ होगा ही नहीं कभी, ऐसा वो समझ रहे। तो लेकिन जब इट हिट्स यू तो अरे यार ये तो पेपर सर पे आ गया। तो थोड़ा सा सीरियसली लें, सेकंड ईयर के एंड पे नेक्स्ट का स्टेज 1 होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा आंसर था। क्योंकि बहुत बच्चे पूछता था नेक्स्ट के बारे में, बहुत फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स बहुत पूछता है। और जो बच्चे भी नीट यूजी भी कर रहे हो, आपके देखो, आपके हमारे टाइम में तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग को कभी भी नहीं मिलता था। वी डिडंट हैव एनी आइडिया जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे थे इसका फ्यूचर में नीट पीजी होगा, सिर्फ इतना ही मालूम था। उसके पहले उसका आगे क्या होगा, यानी कि एमसीएच क्या होते हैं, डीएम क्या होता है, ये हम लोग को मालूम होता नहीं था उस टाइम में। मगर आज आप लोग के ये प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको ये मिल रहा है कि आप पूरे एक क्लियर विजन मिल रहा है। देखो, एक होता है विजन जो कि आपके पूरे ओवरव्यू, आपके लाइफ के ओवरव्यू होते हैं, और एक होते हैं उसमें उसके हिसाब से आप छोटे छोटे उसको टुकड़े में बांटते हो विजन को, उसको हम मिशन बोलते हैं। तो ये जो आपके विजन मिशन ये सब कुछ आपको हेल्प कर रहे हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि आपके जो ड्रीम है उसको हम हेल्प कर रहे हैं ताकि वो आपके रियलिटी बने। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है तो फेसबुक व्यूअर्स को मैं बताऊंगा, आप पूछते रहिए।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन सर आए हैं, नेक्स्ट के बाद क्वेश्चन के बाद एक डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक वी शुड टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सर, जो टाइम मैनेजमेंट होते हैं यानी कि जो शेड्यूल होते हैं, तो हम लोग काफी बार ऐसे होते हैं क्या शेड्यूल को हम एक फॉलो करके कोई एक पर्टिकुलर टाइम में हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या फिर शेड्यूल को फॉलो करके दिन में किसी टाइम पढ़ने में बैठते हैं। तो एक टाइम, जैसे कि टॉपिक में मेरे 2 घंटे है 3 घंटे है मेरे प्लान है, मगर इन द मिडल ऑफ द टॉपिक आई फाइंड दैट द टाइम इज रनिंग आउट। तो ये मतलब हाउ टू ओवरकम दिस थिंग, या फिर ऐसे तो प्रिपरेशन भी हैम्पर होगा ना, क्योंकि सर देखिए जब वो कंप्लीट नहीं होगा उनके जो नेक्स्ट प्लान था वो भी नहीं आ पाएगा। तो वेदर दे शुड लीव दिस पार्ट और वेदर दे शुड कंटिन्यू दिस पार्ट, और व्हाट्स योर ओपिनियन सर? देखो, इसके अंदर ना पहले हमें ना ये जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट है, एक तैयारी का टाइम मैनेजमेंट है, एक एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट है। तो आई थिंक ये तैयारी के टाइम मैनेजमेंट के बारे में यस हम यस बात कर यस रहे हैं। यस यस तो यस। उसमें पहली चीज आपको एक ना मेंटर को या अपने टीचर्स को या अपने इंस्टीट्यूट को जो आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका भी आपको एक शेड्यूल समझना पड़ेगा। मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे डैम्स के अंदर जैसे हमारा एक कोर्स है जो रिपीटर्स के लिए हमने खासतौर पर बनाया हुआ, इसका नाम है टेस्ट एंड डिस्कशन, देवज्योति कुमार में। उसमें हम क्या करते हैं, हर हफ्ते एक बच्चे को एक टेस्ट का शेड्यूल दे देते हैं। क्योंकि जब मैं पहली बार जब हम नीट पीजी की तैयारी के अंदर हमने क्लासेस शुरू की थी 20 साल 22 साल पहले, तो हमने देखा कई बच्चों को परेशानी थी कि शेड्यूल में वो ओवरशूट या अंडरशूट कर रहे थे। जैसे आपने बोला कि किसी सब्जेक्ट को या तो बहुत ज्यादा टाइम दे रहे थे या बहुत कम दे रहे थे। हमने एक शेड्यूल अपना बना के दे दिया। हमने कहा भाई प्लीज आप अपने मेंटर्स पे विश्वास करें और हमारे शेड्यूल को फॉलो करें। तो हमने उनको एक शेड्यूल दिया कि इस हफ्ते में आपका ये टॉपिक खत्म होना चाहिए। और मैं बच्चे का जो पहले दिन ओरिएंटेशन लेता हूं, मैंने उन्हें कहा कि भाई ये अगर मेरे हिसाब से ये एक हफ्ते का काम है तो एक हफ्ते का है। आप हो सकता है एक दिन ऊपर नीचे लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से, मैंने सपोज हमारा एक छोटा सब्जेक्ट होता है जैसे डर्मेटोलॉजी है या साइकेट्री है, मैंने कहा भाई एक हफ्ते में तुम्हें इंटर्नशिप में निकालना है। अब अगर आप उस पर 2 महीने लगा रहे हो तो समथिंग इज ग्रॉसली रॉन्ग एंड यू आर गोइंग टू ईट इनटू अदर सब्जेक्ट्स टाइम। तो आपको मेंटर की तरफ से जो आप अपने टीचर्स को या अपने इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे होते हैं, वहां से आपको एक शेड्यूल मिल जाता है कि यार ये शेड्यूल पे ये टेस्ट आ रहा है, तो उस टेस्ट को अपना फाइनल एग्जाम मानते हुए वहां तक आप अपना सिलेबस खत्म करना। तो कोशिश करें ये बात की, क्योंकि परफेक्शन को अगर आप अचीव करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक ये ब्रिस्टल चक्रवर्ती बच्चे ने पूछा हुआ है, मैंने यस देखा। सर। तो बच्चे आपने जो पहले भी 2-3 सवाल पूछे, वो सभी सवाल जो है आपका माइंडसेट रीट्यूनिंग मांग रहे हैं। मतलब आप एक परफेक्शनिज्म की तरफ बार बार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आपको ये लग रहा है कि जो जिंदगी में लोग या जो एमसीक्यू के अंदर जो बच्चे टॉप कर रहे हैं वो परफेक्ट हैं, ऐसा है नहीं। वो आगे बढ़ रहे हैं बस, और वो टाइमली चीज को खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो आप सोचें कि फिजिक्स को ही आपने बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, आपके पूरे 2 साल हो गए, आप केमिस्ट्री का नंबर ही नहीं आ रहा, तो फिर रैंक तो नहीं बनेगा। रैंक तो तभी बनेगा जब सारी चीज खत्म करेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने जो आपको शेड्यूल दिया है उसको फॉलो करें, मुझे लगता है। या हम जैसे हमारे पीजी एंट्रेंस के अंदर, नीट पीजी के अंदर, हम बच्चों को एक टेस्ट का शेड्यूल कहते हैं, फॉलो करो। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ही सही बात है। और सर एक मेरा एक एक्स्ट्रा एड ऑन है, आपको क्या मानना है? मैं पहले अब बता रहा हूँ ये चीज, बिकॉज आई हैव आल्सो फाइंड दैट द नंबर ऑफ रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि काफी बार बच्चे लोग सोचते हैं मुझे 2 घंटे, मतलब 2 घंटे प्लान था रिवीजन, तो मैं 4 घंटे से रिवीजन करूंगा तो क्वालिटी ऑफ रिवीजन ज्यादा हो जाएगा और उनके जो प्रोडक्टिविटी होगा ड्यूरिंग द एग्जाम ये बेहतर होगा। मगर ये तो होता नहीं है सर, क्योंकि नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर स्पेंडिंग फॉर दैट रिवीजन। तो नहीं, आपको बिल्कुल बिल्कुल टाइम टेस्टेड और प्रूवन बात है जो ये डॉक्टर देवज्योति ने कही। ये बहुत सारे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट भी इसको प्रूव कर चुके हैं कि मल्टीपल फास्ट रीडिंग्स हैव मोर वैल्यू देन वन लॉन्ग रीडिंग। मतलब जैसे डॉक्टर देवज्योति, अब एक रीडिंग को आपने सपोज 2 साल तक एक ही रीडिंग मारी और एक किसी ने उसमें 4 मारी, तो जो मल्टीपल रीडिंग जो होती है वो आपको रिटेंशन में ज्यादा मदद करती है। तो मल्टीपल फास्ट रीडिंग इज अ गुड आइडिया। ऐसा ना हो ना कि आप सोचे कि यार बिल्कुल पक्का हो जाएगा तभी आगे बढ़ूंगा, तो बढ़ ही नहीं पाओगे आगे। मैं ये कह रहा हूं, इसको जरूरी है, आप इस बात को जरूर कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिए, परफेक्शन ह्यूमन बीइंग के लिए अचीवेबल नहीं है। ये बात जैसी अपने को समझ आती है ना तो बात बन जाती है। हम ये सोचे भाई इंसान हूं और मैं परफेक्ट हूं, भगवान बन जाऊंगा। परफेक्शन नहीं है, आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बार बार रिवाइज करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये आप ब्रिस्टल भी बच्चे जो भी हमें सुन रहे हैं, ये आप अगर आपने समझ लेंगे तो कंपटीशन में आप अच्छा कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर, हमने भी जितने सारे प्रीवियस इंटरव्यू किए हैं, जो अभी हमारे नीट यूजी का जो एम्स के बच्चे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से अभी एम्स में है या फिर दिल्ली के इंस्टीट्यूट में है या फिर स्टेट में भी जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, हमारे टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पर है, सभी का यही मानना है। उनने सिलेबस कंप्लीट भी किया और उनको देखिए नीट पीजी के बात अलग है, मगर नीट यूजी के लिए बता रहा हूँ, वो सभी लोग बताते हैं कि वी हैव कवर्ड द सिलेबस 3 to 4 times मिनिमम। तो
क्योंकि एनसीईआरटी जो किताब होता है वो तो दे कैन कवर मल्टीपल टाइम्स, तो उन्होंने भी बार बार यही चीज मेंशन की है सर। आई वांट टू गिव सम सजेशन टू अवर जूनियर्स, क्या नंबर ऑफ रिविजन शुड बी minimum 4-5 times for the NEET UG candidates I am saying, and sir what you say for the NEET PG candidates? डेफिनेटली वो 2 से 3 बार तो रिवाइज करना ही पड़ता है। वो तो देखिए, मतलब अगर हम ये सोचें कि यार एक बार मैंने पढ़ा और मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा, एक बार तो देख के पिक्चर भी याद नहीं होती, एक बार देख के कहानी भी याद नहीं होती, पढ़ाई कैसे याद रह सकती है? तो अगर अब ये इस तरह की अजम्पशंस को हम अपने अंदर ले आते हैं तो कंफ्यूजन रहती है, हम कोर्स ही खत्म नहीं कर पाते। तो बार बार तो करना ही है। जितने भी बच्चे टॉप कर रहे हैं वो एक बार तो जैसे सपोज एक लंबा पीरियड लगा के एक बार तो पूरा सिलेबस बढ़िया से खत्म करते हैं, एमसीक्यू खत्म करते हैं, फिर उसकी मल्टीपल रिवीजन लगाते हैं। और रिवीजन के अंदर इसको आप एक पिरामिड की तरह विजुलाइज कीजिए कि पहली बार तो आपने ज्यादा पढ़ा, लेकिन रिवीजन में फिर आप केवल नोट्स को या जो किताब में आपने मार्क किया हुआ, हाईलाइट किया, उसी को बार बार पढ़ते हैं। और रिवीजन के अंदर टेस्ट देते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उससे आप मल्टीपल रिवाइज कर पाते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है सर कि है क्योंकि व्हेन आई आल्सो प्रिपेयर फॉर द नीट पीजी देन आई फाइंड देयर आर सो मेनी माय फेलो बैचमेट्स हु आर सेइंग क्या भाई एक बार रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, क्या एकदम एग्जाम के दिन तक मतलब जो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं उनको टुकड़े टुकड़े करके रिवीजन करेंगे, मगर नंबर ऑफ रिवीजन एक ही होगा। क्योंकि जब मैं एक टॉपिक को मतलब एक सब्जेक्ट को याद करूंगा पूरे अच्छे से याद करूंगा एंड टू एंड, वो लोग करते भी है, मगर आई फाउंड दैट उन लोग को ना बाद में सर सक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि दे आर नॉट वाइंडिंग अप द सेम थिंग्स। एक बार पूरे को खत्म किया, अच्छे से किया विद ड्यूरेशंस, ये मायने नहीं रखता है। आई थिंक 2 to 3 टाइम रिवीजन इन नीट पीजी सर तो जैसे सर ने भी ये बताया तो और नीट यूजी के लिए मैं तो बिल्कुल बताऊंगा विथ माय एक्सपीरियंस विथ इंटरव्यू विथ ऑल द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, they have already mentioned that 4 to 5 times complete revision is very much necessary for the NEET UG aspirants. With this sir we are almost at the end of the session and आपके एक क्वेश्चन एक और मैं पूछना चाहूंगा सर। FMGE ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सर, क्योंकि ये जो सेगमेंट है FMGE बहुत सारे बच्चे हम लोग को ये पूछता भी है सर, आई एम प्लानिंग टू गो इनटू यूक्रेन, आई एम प्लानिंग टू गो इनटू चाइना, तो ये डिफरेंट कंट्रीज में जाना चाहते हैं और काफी हद तक पूछते हैं सर व्हाट विल बी आवर फ्यूचर, सर प्लीज टेल अस, मुझे रैंक नहीं मिला, मेरे माय पापा कैन अफोर्ड दिस थिंग, सर इफ यू गाइड अस दैट विल बी गुड इनफ। तो सर और ऐसे भी है सर, मैं कुछ बच्चे अभी भी हमारे जिनको मतलब जो फॉरेन्स में जाने की प्लान कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि सर आवर क्लासेस आर गोइंग ऑन, और जो कुछ तो बच्चे जो एडमिशन भी ले चुका है, एक यूक्रेन के बच्चे हैं मुझे मालूम है बहुत अच्छे से जिनके बारे में मालूम है, और एक मलेशिया में एडमिशन ले चुका है, तो उनका सर क्लासेस जो हो रहा है ना वो इंडिया के कुछ कैंपस में हो रहा है या फिर मतलब ऑनलाइन हो रहा है। और आपने ऑलरेडी बताया कि एनएमसी के जो एक रेगुलेशन आए हैं, तो थोड़ा सा सर इसको थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई कर दीजिए क्या मतलब व्हाट इज देयर फ्यूचर। इवन बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर वी आर वेरी टेरिफाइड, मतलब एडमिशन तो ले लिया, कुछ पैसे भी मतलब पापा का वहां पर चला गया, सो हाउ वी शुड थिंक अबाउट दैट, वेदर वी शुड बैक आउट और लाइक व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान फॉर देम। देखो इसमें ना अभी तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो करंट सिचुएशन को अगर हम देखते हैं, जो आज की सिनेरियो उसके अंदर चाइना और यूक्रेन, यहाँ 2 जगह जाने में आपको थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा। पहला, चाइना पैंडेमिक के कारण वहां बहुत रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण वो अभी आप जा नहीं पाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे और फिर एनएमसी बोलेगी कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। यूक्रेन आप जानते हैं वो रशिया के वॉर का जैसा सिचुएशन है, कल को उन्होंने बोला वापस जाओ तो हमारा तो ये एनएमसी रेगुलेशन हमें फंसा सकती है वहां पे, है ना। ये 2 एक यूनिक सिचुएशन है जो अभी करंट सिचुएशन के कारण मुझे लगती है। बाकी मलेशिया में भी सेम प्रॉब्लम चल रहा है सर, वो लोग बच्चे भी मलेशिया के जितने भी बच्चे हैं ना वो भी इंडिया में ही ऑनलाइन क्लासेस टाइप मुझे ऐसा लगता है जो पैंडेमिक के सिनेरियो के अंदर हमें अब्रॉड एजुकेशन जो कि पहले से ही अंडर क्वेश्चन मार्क है, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। आज अगर आप इंडिया के बाहर एमबीबीएस करते हैं, जब आप इंडिया वापस आते हैं तो आपका एक एग्जाम लिया जाता है, उसका नाम है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्क्रीनिंग एग्जाम, जो आने वाले समय में उन बच्चों को भी नेक्स्ट देना है। अभी उनका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट अलग एग्जाम होता है। इस एग्जाम का पासिंग रेट एट दी बेस्ट, जो किसी साल में बेस्ट गया है तो वो 25% है, मतलब बेस्ट पासिंग रेट 25% है, यानी ऑलरेडी 75% बच्चे उस एग्जाम को नहीं पास करते। इसके कई कारण है। पहला कारण है कुछ जगह पे बायलैंग्वेज, जो उसकी जो लैंग्वेज है पढ़ाने की वो इंग्लिश ना होके कोई और लैंग्वेज होती है, तो कई बार बच्चे उसको समझ नहीं पाते जो इंडिया से गए होते हैं। ये आपने जरूर देखना है कि जहां आप जाएं तो इंग्लिश कम से कम वहां पे मीडियम हो पढ़ाने का। दूसरा आपने देखना है कि आप जहां जाते हैं वो कल्चर अलग होता है। कई बच्चे जो छोटे शहरों से हमारे इंडिया से जाते हैं, बाहर देखते हैं एकदम ही ओपन कल्चर देखते हैं, तो वो कहते हैं यार ये कल्चर एकदम अलग है, तो वो पढ़ाई को भूल जाते हैं।
और उनको याद नहीं रहता। फिर जब तक याद आता है, जब तक वापस आते हैं, तब तक उन्हें पता चलता है यहाँ तो मेडिकल साइंस, तो मैंने आपको बताया कि डिटेल साइंस से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तो समझ ही नहीं आती। तो फिर वो उसी प्रकार से देखेंगे आप, फिर कई तरह के लोग इन्फ्लुएंसर आजकल बन गए हैं, कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, कोई कुछ बन गया, वो उनको अलग अलग बताते जाएंगे कि तू एक काम कर, हाथ रख, रट ले। वो मेडिसिन को रटे जा रहा है, उसे 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, पास ही नहीं कर पा रहा वो। तो हमें समझना है कि मेडिकल साइंस को समझने के लिए समय देना पड़ेगा। मतलब मैं मेरे जिंदगी का समय दूंगा, तभी मुझे ये साइंस मुझे मुझे हाथ में स्किल देगी, मेरे दिमाग में मेरे नॉलेज देगी, जिसको मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा, और वही एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, पहला तो एक लैंग्वेज का, दूसरा एक अमेरिका के लिए भी अभी रिसेंटली आप देखेंगे, अगर हम अमेरिका में भी जाके आगे काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक वर्ल्ड डायरेक्टरी के अंदर कॉलेजेस की लिस्ट दे रखी है। आपका कॉलेज उस लिस्ट में होना चाहिए, ताकि कल को ऐसा ना हो आपका कॉलेज उस लिस्ट में ना हो, या यहाँ एनएमसी द्वारा या इंडिया में एमसीआई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और दूसरा, इंग्लिश स्पीकिंग वहां रहे तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, आप पूछ भी सकते हैं कि वहां पे सीनियर कितने पास हो रहे हैं। लेकिन अगर आप वहां पहुंच चुके हैं, देखिए मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, अगर आप वहां पहुंच चुके हैं तो मेहनत कीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप इस बात को लेके इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि करियर में तो पढ़ना आपने केवल एग्जाम के लिए नहीं, मरीज भी तो देखने ही है ना। तो कहीं ऐसा ना हो ना आप सोचें कि यार मैं तो ये वहां परेशानी वहां आती है जब बच्चा कहता है मैं 5 साल तो कुछ नहीं करूंगा वहां पे, मैं आखिरी में आके 3 महीने में किसी तरह से रट के एग्जाम निकाल दूंगा। मेडिकल साइंस में वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही मेरा एक एडवाइस है कि अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पहले जांच पड़ताल कर लें जहां आप जा रहे हैं उसकी, और उससे अभी भी पेंडेमिक सिनेरियो के अंदर थोड़ा सा और कॉशन रखिए, क्योंकि लॉकडाउन और इन सब के इम्प्लीकेशन ज्यादा हो जाती हैं। और तीसरा, जब आप वहां जा रहे हैं तो आप शुरू से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज हमने डैम्स के लिए जो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा ई मेडिकोस, उसके ऊपर हमने लाइव क्लासेस शुरू की हैं फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के बच्चे के लिए, थर्ड ईयर के बच्चे के लिए, ताकि बच्चा दुनिया में कहीं भी बैठा हो हमारे ऐप पे वो टीचर के साथ लाइव पढ़ सकता है, ताकि ऐसा ना हो कि उसके वहां पे अगर एजुकेशन की क्वालिटी इंडिया के बराबर नहीं मिल रही तो वो सफर ना करे। तो शुरू से इस तरह की आप पढ़ाई की तरफ सोचें। बिल्कुल ही सही। आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ लास्ट 5-10 मिनट्स में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछता है सर, क्योंकि इंडिया में अभी ये डॉक्टर बनना एक तो मतलब मम्मी पापा का बहुत ही मतलब वो लोग चाहते हैं क्या मेरे बच्चे डॉक्टर बने, तो और सबका रैंक तो नहीं आता है, तो इसी बीच में एक ऐसे एक डिसीजन लेते हैं और उसके बाद वो बेचारा सब लोग फंस जाते हैं। वो सोचते हैं क्या मतलब इस चीज़ को आगे कैसे लेकर जाइए। तो और अभी एनएमसी भी मतलब रोज रोज एक नए नए रेगुलेशन डाल रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। कुछ ही दिन पहले एनएमसी ने में एक रेगुलेशन डाला था कि ऑफशोर कैंपस, यानी कि आपको फॉरेन एजुकेशन लेना भी है तो वहां पर जाके आपको एजुकेशन लेना है। कुछ ऐसे कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी है इंडिया में जहाँ पर रजिस्टर्ड तो है या फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मगर क्लासेस होता है ऑफशोर यानी कि इंडिया में। तो ये बहुत ही उन लोग के लिए भी कंफ्यूजिंग है क्या अभी करना क्या चाहिए। So I think we have done a wonderful discussion since last 1.5 hours, and we have spent a good time, sir. Thank you so much, sir, for joining. Sir, if you have any particular message to all these budding doctors for both new UG and PG, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होगा क्या सेशन के बाद वो लोग इसको रिवाइंड करके देखेगा, बहुत सारे बच्चे जो मिस कर गए लाइव सेशन को वो भी देखेगा। एंड सबको मैं बता रहा हूँ ये वीडियो आपको रहेगा आपके हमारे फेसबुक में भी रहेगा, हमारे यूट्यूब में भी रहेगा, सो यू कैन वॉच एनी टाइम। कभी लगे क्या मतलब सर ने ये बताया था लाइव क्लास में एक सोल्यूशन बताया था कुछ याद नहीं आ रहा है, तो यू कैन वॉच दिस। एंड और भी बाद में भी आपके कुछ क्वेश्चन आए तो यू कैन कमेंट देयर, and we will directly convey it to Dr. Sumesh sir, and he will reply, and we will also paste that reply in the chat sections. Okay sir, please any closing message from your side? ये देखो, मैं ना यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ सभी बच्चे जो स्कूल में आज अगर नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं या इस साल उनका नीट यूजी में रैंक भी आया है, तो आपने ना एक अपना वाई अंदर से टटोलना है। एक ना इंडिया में एक हम कई बार गलती कर रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि ये हम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं। आप करियर अपने लिए बना रहे हैं, इस बात को ना भूलें कि आपका वाई क्या है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करो। मतलब कोशिश करो आप, मैं जानता हूं आपकी उम्र कम है लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि हम सोच ना पाए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम अभी 10 साल के बच्चे, ऐसा तो नहीं ना। 18 साल वोट देने के लायक भी बन जाते हैं कई बार हम 18 साल के होने के बाद। तो ऐसा ना हो कि हम अपना वाई एक बार जरूर टटोलते रहिए और उसको अपने दिमाग में सोचो कि मेरे जिंदगी का वाई क्या है। सपोज करो कि आपका मेडिकल एजुकेशन में आने का, डॉक्टर बनने के पीछे कुछ कारण आपने सोचा, आपका कोई वाई है,
उस वाई को एक अपने चिट में, इनविजिबल चिट में डाल के, जेब में डाल के रख लीजिए। ये बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि जर्नी मुश्किल भी है, लंबी भी है। लेकिन आप बोलो कि कोई जर्नी आसान है, आसान कुछ भी नहीं। कोई भी चीज जो पाने लायक है वो आसान हो ही नहीं सकती। नहीं तो मतलब आसान, मैं कैसे, मैं मेरे को कई बच्चे कहते हैं कि आसान, आसान तो लॉटरी हो सकती है, लेकिन मैंने किसी की लगती हुई नहीं देखी। पता है ना, बाकी सब में मेहनत करनी पड़ती है। तो मेडिकल करियर भी उसी प्रकार से करियर एक स्किल है, टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा इसमें, जब आप आगे बढ़ोगे, कई बार आपको सेल्फ डाउट आएंगे, कई बार आपको गुस्सा आएगा, कई बार आपको दर्द होगा, कई बार डिफीट होगी, कई बार आप सही नहीं कर पाएंगे, मतलब और आगे पेशेंट मैनेजमेंट में भी आपसे गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होंगी। तो हर बार आप मायूस होके, कई बार आपको लगे मैं छोड़ दूं यार, नहीं कर पाऊंगा यार, मुझसे नहीं हो रहा, आप गुस्सा दोगे, आप ट्विटर पे लिखोगे, जूनियर 10वीं के पढ़ रहे होंगे आपको, आप लिखोगे बेकार है मेडिकल साइंस, बाकी पढ़ रहे हैं क्या बेकार है, ऐसा नहीं है। वो आपका मोमेंटली आउटबर्स्ट होगा। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो बार बार उस वाई को देखोगे, अपने आप को रिकैलिब्रेट करके वापस अपने ट्रैक पे आ जाओगे। अगर वो वाई नहीं बनाओगे तो दुनिया भटका देगी। तो बीच में आपको लगेगा कि पता नहीं मेरा पर्पस क्या है। मैं समझ रहे हैं आप, ये लंबी जर्नी के अंदर यही परेशानी होती है। लंबी जर्नी है, मेडिकल साइंस एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। ये छोटा काम नहीं है कि कल आपने किया परसों आप सीख गए। कोई हमने मतलब समझ रहे, अब हजारों करोड़ों बीमारियां हो सकती हैं, हजारों नॉर्मल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं जो हम पूरी तरह जानते भी नहीं आज। तो उसको पढ़ने में समय तो लगेगा, सीखने में। तो एक अपना एक वाई बना लो और उस अपने आप को पीरियोडिकली उसको रिमाइंड कराओ। वो आपके कंपस की तरह एक्ट करेगा, आपको बार बार जब भी आप भटकोगे आपको ट्रैक पे ले आएगा। कभी कभी, और दूसरी एक मेरी और पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि एज अ पेरेंट भी जब मैं सोचता हूं तो एक हमें अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं भूलना। क्योंकि एक सपने भी आपने देखे, आपने परिवार, रिश्ते, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अवॉइडेबल है वो है कोई भी तरह का ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो आपके यहाँ पे फैशनेबल भी माना जाए, वो फैशनेबल नहीं है, वो एक पीयर प्रेशर है, आप उस चक्कर में ना जाएं। मैंने बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके देखे जो इन चक्कर में, इस कारणों के कारण अपने हेल्थ को या करियर को ट्रेंडी लगने के लिए, कूल लगने के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। मैं पता नहीं इसको मैं कह सही मैं अल्फाज ला पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन ये मैं चाहता हूं आप इसको जरूर सुनिए कि मैं अपने आप को कूल मानता हूं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो एग्जाम दिया, ऑल इंडिया रैंक टॉप 5 लाया हूं, मैं टॉप 5 के अंदर हमेशा लाया हूं। मैंने जो बिजनेस शुरू किया पूरे इंडिया में उसके ऑफिस खोले, मेरा जो मोबाइल ऐप है उसमें 5 लाख से ऊपर डॉक्टर्स उसके अंदर पढ़ते हैं। तो लेकिन मैं कूल बनने के लिए किसी पार्टी में जाके ड्रिंक नहीं करता, मुझे कोई कूल बनने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में कूल हूं। ये आपने अपने आप को याद कराना, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, अपने आप में कूल है। आपको कोई किसी के साथ कोई पीयर प्रेशर में, किसी दबाव में आके कहीं भी जाके अपने, क्योंकि फिर करियर, अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो फिर करियर कैसे हो पाएगा। मैं आप समझिए बात को। तो ये मेरे कुछ एडवाइसेस हैं जो मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में आपको फायदा करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सर ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि आज इसे ऐसे एक प्रमोट किया जा रहा है बच्चों के अंदर कि यार ये जाके बार में बैठेगा तो कूल होगा। मैं कह रहा हूँ डायसेक्शन हॉल में जाएगा तो कूल होगा ना, जब वो डॉक्टर बनेगा, आगे बड़ा काम करेगा तो कूल होगा। तो ये अपने दिमाग से ये जो आपके पीयर प्रेशर आपके लिए कूल की जो डेफिनेशन बना देते हैं उसमें मत आए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि जो मुझे 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 कूल नहीं लगता तो मैं नहीं करता, चाहे कोई कुछ भी कहे। कई बार मेरे दोस्त यार कहते हैं तू तो कहीं नहीं आता यार, तू तो किसी पार्टी में नहीं आता। मैं कहता कोई बात नहीं यार, मेरा सपना, मेरा कूलनेस है, मैं वही करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा ये एक मतलब एटीट्यूड चाहिए मेडिकल करियर के अंदर, क्योंकि थोड़ा लंबा करियर है, अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी पीक नहीं आ पाएगी। एकदम सही बात है, एकदम सही। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मिले बच्चे लोग को एट एंड में भी। और सब लोग ये जो भी हम लोग डिस्कशन किए इसको याद रखना, क्योंकि आप लोग के जो अपकमिंग डेज है बेटा उसमें ये बहुत काम में आएगा। whatever we have shared, that is nothing but the extract of our last 10 years experience, और सुमेश सर के तो last 22 years के experience है। So with this you will be definitely enriched. Okay, so thank you so much sir for joining these sessions, and we had a wonderful time, and I think we have helped many medical students and future doctors. Thank you so much, sir. Thank you, students, for joining. And I also want to thank you, all the back-end crew members of Team PrepMed, who are helping us constantly to continue these sessions flawlessly and to take the questions from the students.
And thank you, Dr. Shumit Shetty. Thank you, DAMS, for these amazing sessions and providing the proper scope to our students so that they can ask the questions and get answers. Thank you so much, sir. Have a wonderful day. Thank you for having me, and I wish all the bachas best of luck. Stay positive, keep moving forward. आपका सपना आपका है, उसके तरफ बढ़ते चलो, वही ट्रू कूलनेस है. Best of luck everybody. Best of luck.